And let's start. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, people. So this is your reading time in your exam, and you have to read everything that you have over here, and you're allowed to go through the questions. So we know that the global context is this, and all of that is over here. And there's gonna be a Venn diagram question. There's gonna be angles. There's gonna be coordinate geometry, and so on. So I know the topics that I'm gonna be tested on just by looking at this over here. This is your highlighting tool. This is the calculator. This is the formula booklet, and these are all the questions. Let's start. Okay, there's no time because obviously it's the examiner mode, but you will have the 2 hour time over here. So the following image shows the completed multiplication pyramid. Determine the missing values in each of the following pyramids. Now I've never been taught a multiplication pyramid. I need to learn what's happening in this image, make sense of it myself, not blame anyone or the teacher for not telling me, and then do the rest of the questions. Okay? So, first of all, what happens to 2 and 5 to get 10? Multiplication pyramid. They multiply to give me a 10. 5 and 3 multiply to give me a 15. 10 and 15 multiply to give me a 150. So you must make sense of what is given in order to make sense of what is not given. Okay, so now common sense. What do I multiply y square with to get xy square? Obviously there has to be an x. Okay, next, what do I multiply y square with to get y cube? Of course, another y, and that's it. All right, xy square multiply by y cube. So when you multiply, you add the power. So it's going to be xy to the power 5. Notice I'm not inserting y to the power 5. I just inserted 5. You just insert the missing thing that is missing. Okay, पूरा लिखने की जरूरत नहीं है. You don't have to write it all. Now, can somebody please throw Mustasan out again? Yes, sir. Okay. No, it's not Mustasan. It's an impersonator. Okay. Anyways. Sir, Yeah. isn't this our mock? This was the first question of your mock. This is not your mock. This is the November 2025 e-assessment, your latest assessment yet. Okay. So guys, Sir, guys, it's a combination, no? guys. Now, what do I multiply? Like, what two things do I need to multiply to get 3 square root 3? So, common sense. What's inside the square root? A 3. So my best bet would be, my guess would be that I should have a 3 inside over here, right? And what's going to multiply with this square root 3? Another 3. So that's how common sense it actually was in the e-assessment, sorry, in the mock that you guys got, that which two things are multiplying to give you 3 square root 3? 3 and a square root 3. That's it. And some of you were actually asking, sir, हम square root कैसे डालें? यहाँ तो square root डाल ही नहीं सकते. यार square root डालने की जरूरत ही नहीं. Ibrahim, please throw this guy out. Okay. Everyone, please keep a check on this guy. अगर इसको किसी तरह report कर सकते हो तो please report, या ban कर सकते हो please ban it. Okay. And if I find who this guy is, I'm not gonna leave him alone. Okay. Don't worry about it. I'll just change the meeting to be trusted. I'll just let anyone who isn't that guy. हाँ, क्योंकि अब तो आप लोगों को इन कर सकते हो ना, so you know who can come. You can basically have the control. So आप ना please अब वो meeting को ना ask to join कर दो. Okay. So what do I am multiplying 2 square root 2 and a 3. So number gets multiplied with the number, square roots get multiplied with the square root. There's no square root multiplication over here. So obviously inside the square root, I'm going to have a 2. But the 2 outside is multiplying with the 3 outside. So it's going to become a 6. So we have 6 square root 2 over here. Done? Again, easy. Now let's multiply everything together. Square root 2 multiplies with square root 3. Guys, you should know the rule. Whenever you have square roots and they're multiplying, like I may need to go to the next question to basically type it inside. If you have, just like this, if you have a square root 2, then it is multiplying with another square root 3. You should remember the rule that I can combine these things inside one single square root. So it's actually 2 multiplied by 3.
inside the square root, which means that I now have a square root 6, right? So when you have two separate square roots and they're multiplying, you can combine the things inside one single square root and allow them to be multiplied, okay? So that's the same thing I'm actually gonna go back here and do, that the square root 2 multiplies with the square root 3 to gives me a square root 6. And then the 6 and 3 outside, the number gets multiplied with the number. The 6 and the 3 multiply to give me 18. Okay, so this is the complete question that you guys had in the mock first question, and do not be surprised if you again have a radical as question number 1, okay, or index laws as question number 1, or maybe basic circle theorems or angles in question number 1. Okay, question 1 is basically just to test or to poke at you whether your brain is working or not. Okay, we move to question number 2. I hope everyone is ready. I think you've seen this question in the December exam, right? So let's quickly do it. A school offers MYP 5 students a selection of after school clubs. There are 96 students in MYP 5. The total inside the rectangle should be a 96. That's how I read this. Okay, can highlight it as well. I'm highlighting it. Well, the highlighting tool is not working. Oh yeah, it is. Sorry. 43 chose science. The total inside the circle of science should be 43, but out of that 43, 25 has already been used up. So what is left? So it's gonna be 43 minus 25. That's gonna give me 18. So this guy is an 18. Okay. Next up, 70 chose football. The total inside the circle of football should be 70, but out of that 70, 52 has already been used up. So 70 minus 52, again the answer is 18, which means my answer is correct. You should be confident in your answers. So what's the total inside this complete circle? That's a 96. So add everything and subtract a 96 from that. So 96 minus 25 minus 18 minus 52. 96 minus 25 minus 18 minus 52. Okay, that's a 1. Alright, jaisa marzi answer ho, I have to take it. So that is a 1. Okay, now how do I check whether all of my answers are correct? 25 plus 18 plus 52, 25 plus 18 plus 52 plus 1. Okay, so if you add all of these numbers, 25 plus 18 plus 52 plus 1, you will get a 96. I'm not doing that because that's gonna take too much time. Okay, next question. If I don't have the Venn diagram properly filled, all of my answers are gonna be wrong. You can then rely on the examiner to give you ESF. It may be there, it may not be there. Do not do that. Okay, write down the probability that a student selected at random is in the science club. So first of all, student selected at random का मतलब क्या है? My denominator is gonna be the total. So first of all, when I write down the fraction, my denominator is actually gonna be the total. So this is my fraction. My denominator is a 96. So you want the student to be in the science club. It does not say in the science club only. उसने कहा है in the science club. So science के circle में कितने लोग हैं? 25 plus 18. Okay, that is 25 plus 18. ठीक है, this is your confirmed equation. ठीक है, अब obviously you know that 25 plus 18, that's a 43. आप directly answer भी लिख सकते थे. You can just write your answer as 43 over 96. That's it. Khatam. Sorry, I should be choosing the correct notation. 43 over 96. Bas, khatam. No need to convert it to a decimal. That's extra work. You can do it if you like. No need to. Please, khuda ka wasta, don't convert it to a percentage. No one wants that. Okay? किसी ने आपसे नहीं कहा. I'm not gonna convert it to a decimal because उसकी ज़रूरत नहीं है. Write down what this represents in context of the question. I'm gonna highlight this boy in context of the question. बिकॉज आप लोग ये लिखते हो इनसाइड द सर्कल ऑफ एस एंड आउटसाइड द सर्कल ऑफ एफ. गलत है ये भाई. दैट इज नॉट द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द क्वेश्चन. द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द क्वेश्चन इज दिस. आई नीड दीज वर्ड्स, साइंस एंड फुटबॉल. दोज पीपल, those students who choose science and do not choose football. Okay,
So these are the students who choose science and did not choose football. Okay, I need to write the word and because it's intersection. So uh, both of the conditions should be fulfilled at the same time. I'm inside the So circle of S. what if you write but instead of and? It's the same thing. Okay, same thing. All right. So make sure you don't mention things like the circle of S, the circle of F. It's not generalistic question. It's a contextual question. आपने science club और football club का नाम लिखना है. Okay. Okay. स्पेलिंग या ग्रामर को चेक कर लें. द साइंस क्लब बट डिड नॉट चूज द फुटबॉल क्लब. डन हो गया. आगे चलते. टू स्टूडेंट्स आर सिलेक्टेड एट रैंडम. इसका क्या मतलब है? यू मस्ट हैव टू फ्रैक्शंस. टू स्टूडेंट्स का मतलब टू फ्रैक्शंस. और जब तक वो दो बंदे आप सिलेक्ट नहीं कर सकते यू विल कीप ऑन मल्टीप्लाइंग. ओके, ऐड नहीं करना खुदा का वास्ता. राइट नाउ व्हाट डू आई नीड? सबसे पहली चीज, द टू स्टूडेंट्स आर सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम द इंटायर ग्रुप. यानी जो मेरे दो डिनोमिनेटर्स होंगे, one of the denominator is gonna be a 96 and obviously when the second student comes the next denominator is gonna be a 95. ठीक है. सो मुझे ये पता चल गया दो फ्रैक्शंस होंगी. मुझे ये पता चल गया दोनों ने मल्टीप्लाई होना है. आई गेट टू नो वन ऑफ द फर्स्ट डिनोमिनेटर इज 96, द सेकंड डिनोमिनेटर इज 95. न्यूमिनेटर क्या होगा? न्यूमिनेटर मुझे पता चलेगा विद व्हाट आई वांट. फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ स्टूडेंट्स आर इन द साइंस क्लब एंड द फुटबॉल क्लब. टेल मी कौन सा रीजन साइंस एंड फुटबॉल को रिप्रेजेंट कर रहा है? इट्स द इंटरसेक्शन. सो पहली फ्रैक्शन, यू गाइस गेस्ड इट, पहली फ्रैक्शन आपकी होगी 18 over 96. इस सबको जरा इरेज करो, आई डोंट वांट इट कॉपीड. 18 डिवाइडेड बाय 96 and you multiply that by 17 divided by 95. I'm just gonna type this, just gonna move forward. Okay, close करो इसे and I'm just gonna press the copy from calculator button. फ्रैक्शन भी आ गई, आंसर भी आ गया. नाउ फाइनल आंसर ऑब्वियसली 3 डेसिमल प्लेसेस में लिख दो या जैसे भी लिखना है. दिस सीम्स अ बिट लाइक अगली. ओके, 0.03355. क्या हुआ? हाँ हाँ, फ्रैक्शन भी हो सकता है. मेरे कैलकुलेटर ने शो नहीं किया फ्रैक्शन, तो मैंने यही कर दिया. इट कैन ऑल्सो बी 0.033. इट सॉरी 34. इट कैन ऑल्सो बी 0.00 sorry 0.0336. Okay, everyone please mute yourself unless you have a question. This is really serious business. We're making a marking key of the exam. ठीक है, ये मजाक नहीं है. राइट, इट्स प्रेफरेबल कि आप अपने आंसर्स अगर फ्रैक्शन में नहीं आ रहे तो डेसिमल को अन्य वहाँ इन्फिनिट डेसिमल्स में ना छोड़ो, ज़रा तरीके से किसी भी तरीके से लिख लो. दिस इज 2 सिग्निफिकेंट फिगर या 3 डेसिमल प्लेसेस. दिस इज 4 डेसिमल प्लेसेस या 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स. दिस इज 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स या 5 डेसिमल प्लेसेस. ओके, मैंने सारा आपको लिख के बता दिया है. राइट, ओके, वी मूव फॉरवर्ड. डन हो गया? ओह नाइस, इजी सवाल था. प्रोबेबिलिटी गाइज याद रखना, ये आपका कम टाइम में होने वाला सवाल है. इफ क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन 3 टेक्स टाइम, प्रोबेबिलिटी में आपने टाइम सेव करना है. या प्लीज. Can we write our answer as a fraction? Yes, you can write your answer as a fraction. I already answered that. Okay, मेरे कैलकुलेटर में फ्रैक्शन नहीं आ रही, इसीलिए ऑटोमेटिकली उसने डेसिमल शो कर दिया. जो भी कैलकुलेटर शो कर दे अन्य वहाँ लिख लो. ओके, दैट्स इट. Don't interconvert between forms. No one's gonna know. No one's gonna give you credit. Okay? जल्दी से हम करते हैं आगे. ओके, सर्कल थ्योरम्स का सवाल आ गया. और मज़े की बात यह है कि सर्कल थ्योरम के सवाल में शुक्र करो, अल्लाह का शुक्र करो, उसने टेक्स्ट टूल आपको दी है. इसका मतलब अगर कोई एंगल आप निकाल रहे हो, इसका मतलब यू कैन टाइप इट ओवर हेयर
यू डोंट नीड टू मेमोराइज के ये एंगल कौन सा है, ये एंगल कौन सा है, आप टाइप कर सकते हो. यू कैन ड्रॉ लाइन्स इफ यू वांट. ओके. State the reason why angle BCA is 55. BCA is 55. Angle at the center is twice the angle at the circumference when it is made by the same 2 points or subtended by the same arc, जैसे भी बुक्स में लिखा होता है. ओके. Angle at the center, which is angle BOA, is twice the angle at the circumference. Okay, which is angle BCA. Subtended का मतलब होता है made by. Okay, subtended by the same 2 points. And what are the 2 points? B and A. Or you can also call it as or subtended, subtended by the same arc AB. BA कह लो या AB कह लो, बात एक ही है. ऑलराइट, गुड हो गया, कुछ और नहीं लिखना. 1 मार्क है. वी मूव फॉरवर्ड. ओके. A line is drawn from C to O. Find the angle BCO. अब देखो, सर्कल थ्योरम के अंदर आप लोग ओवर कॉम्प्लिकेट इसलिए करते हो कि आप लोग थ्योरम्स याद करते हो मुश्किल, जबकि मैंने आपसे बहुत दफ़ा कहा है सबसे बड़ी हेल्प आपकी रेडियस होनी चाहिए, आइसोसेलेस ट्रायंगल होने चाहिए और जितने भी एंगल्स आप निकाल सको. ओके. 1 मार्क के सवाल है, इसका मतलब सिर्फ फाइनल आंसर देखे जाएंगे. राइट. आपने सबसे पहले एंगल BCO निकालना है. राइट. So let me work my way forward. Alright. सबसे पहले मुझे बताओ, OA is the radius and OC is the radius. Okay. So radius is equal to OA and OC and OB. ये सब मेरी रेडियसेस हैं. इसका मतलब I have an ISOSCELES triangle. और वो कौन सा आइसोसेलेस ट्रायंगल है? इट इज ट्रायंगल AOC. और ये वाला भी आइसोसेलेस ट्रायंगल है COB, बिकॉज दोनों में 2 साइड्स आपकी रेडियस है. एक में OA और OC आपका रेडियस है, दूसरे में OB और OC आपका रेडियस है. सो आई एम गोना फर्स्ट फोकस ऑन दिस ट्रायंगल ओवर हियर. ओके, दिस वाला ट्रायंगल. लेट्स फर्स्ट फोकस ऑन दिस गाय. सो जब हम इस ट्राइंगल पे फोकस कर रहे हैं, वी नो दिस लेंथ इज अ 15. सो ये लेंथ क्या होगा? दिस लेंथ इज ऑल्सो गोना बी अ 15. सो वी हैव आइसोसेलेस ट्रायंगल्स AOC एंड BOC. ठीक, सही है. सो लुकिंग एट ट्रायंगल AOC, राइट. सॉरी, मुझे ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैं टेक्स्ट टूल से ही सारा कर लूँगा. सो टेक्स्ट टूल में ये बंदा भी 15 हुआ. आई होप एवरीबडी अग्रीज विद दैट. ओके, अगर ये 15 है, ये 15 है, तो ये बॉय क्या होगा? लाइक सेंटर वाला. कैन एनीवन टेल मी? 180 माइनस 15 दैट इज़ अ 150. गुड, मैंने कैलकुलेटर से वैसे ही चेक कर लिया. दैट इज़ अ 150. सॉरी, ये गायब हो गया. दैट इज़ अ 150. डन हो गया. अब अगर ये बॉय 150 है, ये देखो कॉमन सेंस की बात है गाइस, आपका ये एंगल 110 है, ये 150 है. सो एंगल अराउंड अ पॉइंट, ये O वाला एंगल क्या होगा? 360 माइनस 110 माइनस 150. ओके, सो 360 माइनस 110 माइनस इस 150 को अन्य वहां कॉपी पेस्ट करने का क्या तरीका मैंने आपको बताया है? ANS टाइप कर दो या प्रेस कर दो. दैट इज 100. गुड जॉब. ठीक है. सो ये मेरा एंगल आ जाएगा 100. नाउ गाइज, आप लोग एग्जामिनर को हल्का ना लो. अगर एक एग्जामिनर मेरी ये वर्किंग देख लेना, और अगर ये कोई 2-3 नंबरों का भी सवाल होता, मुझे पूरे नंबर वर्किंग के मिलने थे, चाहे मैं यहाँ कुछ टाइप भी ना करूँ. बिकॉज जब आपकी सोल्यूशन जाती है ना एग्जामिनर के पास, ये एडिटेबल डायग्राम भी उसके पास जाती है. एग्जामिनर विल नो कि मैं ये सारे आंसर्स ठीक निकाल के आगे पहुंचा था. ठीक है. सो उसे कोई वर्किंग की जरूरत नहीं है. He does not want all of this. ये मैंने आपके लिए नोट्स लिखे हैं. ठीक है. सो हमने एक एंगल निकालना है. द एंगल दैट वी वांट टू फाइंड इज
BCO। अब देखो ये भी आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ठीक है। दिस इज x एंड दिस इज x। 180 प्लस x, सॉरी 100 प्लस x इक्वल्स 180। ओके, सो इफ वी फॉलो दैट इक्वेशन, 180 में क्या, सॉरी 100 में क्या मैं दो एंगल्स ऐड करूं कि 180 बन जाए, सो दैट्स गोना बी 40 प्लस 40। 100 plus 2x equals 180, so the 2x is going to be an 80 and x is going to be 40. So this is 40 and this is 40. Please write all of these down. This is 40 and this guy is also going to be 40. Please text tool ko use karna khuda ka wasta. Now do you have your answer? No working needed. ये देखो मैं टाइप भी नहीं करूंगा, जस्ट कैन कॉपी पेस्ट इट बिकॉज आई डू कॉपी पेस्टिंग अलॉट। BCO इज 40 डिग्रीज। आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो डिग्रीज, लेकिन अगर आपको सिंबल चाहिए डिग्रीज का, मेरे ख्याल से ये मैथ मोड में आओगे और यहाँ डिग्रीज ये पड़ा हुआ है, ठीक है। सो ये डिग्रीज डाल देना, मैं यहाँ से डिग्रीज यहाँ से इरेज कर देता हूँ, ठीक है। आगे एंगल BOC क्या है बताओ जी। BOC आई थिंक दैट्स 100। मैं ऑलरेडी निकाल चुका, मुझे कुछ करने की जरूरत ही नहीं। सो दैट्स बेसिकली इट। आप लोग को कोई फोर्स भी नहीं करता कि ऑर्डर में सवाल सॉल्व करो, जो पहले सॉल्व हो रहा है पहले कर लो, जो बाद में हो रहा है बाद में कर लो। यू शुड नॉट गिव अ डैम, यू जस्ट सॉल्विंग क्वेश्चंस, यू डोंट केयर किस ऑर्डर में हो रहा है, ठीक है। एग्जामिनर को ये पहुंच जाएगा। प्लीज यूज दिस, प्लीज यूज दिस। कोई लाइन ड्रॉ करनी है लाइन ड्रॉ कर लो, आई डोंट माइंड दैट, ओके। लेकिन हमें लाइन ड्रॉ करने की आज सच जरूरत नहीं है, ठीक है। नाउ वी आर नॉट गोना डू दैट। ओ सॉरी, मैं क्वेश्चन फोर पे चला गया हूँ, 3 तो हमने पूरा सॉल्व ही नहीं किया। देर आर मोर पार्ट्स टू क्वेश्चन नंबर 3। Oh, given that the length of arc BC is 20, आर्क लेंथ की बात हो रही है। आर्क लेंथ वो फॉर्मूला है जो आपने याद करना होता है, यू कांट स्किप इट, ओके। सो आर्क लेंथ को याद करना, इट्स एंगल ओवर 360 into 2 pi r, इट्स नॉट गिवन इन द फॉर्मूला बुकलेट। आर्क लेंथ आपको गिवन है, सरकमफेरेंस तो जरा निकाल दो। अब देखो आर्क लेंथ इज इक्वल टू, आर्क लेंथ is equal to angle over 360 multiply by 2 pi r, ओके। अब ऑब्वियसली मैं वो बंदा हूं जिसने इस वक्त आई एम गोना यूज माय रफ शीट, ओके। मैं रफ शीट यहाँ खोल नहीं सकता, इसीलिए मैं आपको दिखा नहीं सकता। अब इस फॉर्मूला के अंदर आप मुझे बताओ क्या चीज आपको गिवन है और क्या चीज आपने निकालनी है। आर्क लेंथ आपको गिवन है और आपने सरकमफेरेंस निकालना है। कैन एनीवन टेल मी सरकमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है? एनीवन? 2 पाई आर। क्या यहाँ 2 पाई आर मुझे गिवन है अपने फॉर्मूला के अंदर? कैन आई सी 2 पाई आर रिटन इन माई फॉर्मूला? हेलो, यस और नो, एनीवन? Yes, sir. ओके, तो ये आसान सा काम नहीं है कि इस फॉर्मूला में आर्क लेंथ भी मुझे गिवन है, एंगल ऑफ द सेक्टर भी मुझे गिवन है। आई नो दिस ओ एंगल इट वाज 100, मैंने ये 2 पाई आर निकालना है। फाइंड दिस होल थिंगी विच इज कॉल्ड 2 पाई आर। आप इस पूरे को x भी कह सकते हो, ओके। आप इस पूरे को y भी कह सकते हो, मैं नहीं कहूंगा, ओके, ठीक है। लेट इट रिमेन 2 पाई आर, ओके। अब अपना फॉर्मूला लिखो, आर्क लेंथ 20 इज इक्वल टू एंगल ऑफ सेक्टर कितना है। अगर ये आर्क लेंथ है, इट इज मेड बाय दिस सेक्टर, सो दिस इज द एंगल दैट आई एम लुकिंग एट एंड दैट इज 100, ओके। सो दैट इज 100 डिवाइडेड बाय 360 मल्टीप्लाई बाय 2 पाई आर विच इज x। मैं इसे 2 पाई आर ही रहने देता हूं, ओके। जिस बंदे को आपने फाइंड करना हो उसको आइसोलेट करना पड़ता है। प्लीज आइसोलेट दिस 2 पाई आर, ओके। अब इसे अगर मैं सही तरह लिखूं तो इसे मैं ऐसे लिखूंगा 20, सॉरी यहां मुझे लिखना पड़ेगा 20 इज इक्वल टू एंगल डिवाइडेड बाय 360, ओके। लुक्स लाइक समवन वांट्स टू हैव फन। 2 पाई आर, ओके। अब मैंने 2 पाई आर को निकालना है, जिस बंदे को निकालना है उसको आइसोलेट करो। आइसोलेट का मतलब दिस बॉय शुड बी अलोन ऑन वन साइड, और 360 को यहां मल्टीप्लाई करो 20 से और 100 को डिवाइड कर दो, ओके। सो माय नेक्स्ट स्टेप इज सिंपली गोना बी 20, sorry I'm just gonna create a fraction,
20 मल्टीप्लाई बाय 360, आप लोग सिंप्लीफाई करके भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, लेकिन मैं एक साथ ही कर रहा हूं, इज इक्वल टू 2 पाई आर। ठीक हो गया? दिस इज योर सरकमफेरेंस। 20 मल्टीप्लाई बाय 360 डिवाइड बाय 100 करो, दैट्स द आंसर ऑफ योर सरकमफेरेंस। ओके, सो 20 multiplied by 360 divided by 100. Confirm, insert equation. Let's do it correctly. Okay, so let's go to the calculator. 20 multiplied by 360. 20 multiplied by 360 divided by 100. That's my answer. That's a 72. Okay, so इस सारे को erase करो, इस सारे को erase करो, वैसे आ भी जाता खैर है, ठीक है, that's a 72 and that's where we are. Copy from calculator करो, so the circumference is equal to 72. हाँ, अब बताओ। Sir, if we find the value of r and then put it into this formula. हाँ, and कर then सकते find हो the- आप, लेकिन r तो उसने आपको नीचे निकालने को कहा है, हेंस और अदरवाइज। हाँ, कर सकते हो आप, यहाँ r निकालो, फिर सरकमफ्रेंस निकालो और यहाँ r की वैल्यू कॉपी कर लो, लिटरली आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। एग्जामिनर विल नेवर से, बिकॉज उसने कहा है हेंस और अदरवाइज। अदरवाइज का मतलब मर्जी है आपकी कि पहले ये करो बाद में ये कर लो, या पहले दोनों काम कर लो और बाद में लिख लो। आई डोंट माइंड The दैट। value is 90 ना? हाँ, नहीं नहीं नहीं, वैल्यू आपकी सेम आएगी, 100% सेम आएगी, और करने का तरीका भी ठीक है। ओके, मैं ये दूसरा मेथड भी लिख देता हूँ। मेथड 2 would be find the radius first, then use 2 pi r to find the circumference. This way you will automatically solve the next part, which is 3e as well. ठीक है, ऑटोमेटिकली, राइट। सो आप ये सिंपल वाला तरीका भी यूज कर सकते हो। आई डोंट माइंड दैट द सरकम इज इक्वल टू 72। ओके, मर्जी है आपकी, आई डोंट माइंड दैट। और ये 72 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। अब सरकमफेरेंस हमें दिया हो तो हम रेडियस कैसे निकालते हैं, हम जरा यहाँ पे वो सॉल्व कर ले। सरकमफेरेंस इज 2 पाई आर। ओके, सो हम जरा मैथ वाली इक्वेशन में जरा चले जाएं, बिकॉज हमें थोड़ा सा टाइप करना पड़ेगा। सरकमफेरेंस इज इक्वल टू 2 पाई आर। ओके, 72 इज इक्वल टू 2 पाई आर। आपने आर फाइंड करना है, सो 72 डिवाइडेड बाय 2 पाई इज इक्वल टू आर। ठीक है, अब r का आंसर निकालो। 72 डिवाइड बाय 2 पाई, आर यू रेडी? तो 72 डिवाइड बाय 2 पाई आपको यहाँ कैलकुलेटर में लिखना पड़ेगा। सॉरी, लेट्स डू इट ओवर हियर। 72 डिवाइड बाय 2 पाई, 72 डिवाइडेड बाय 2 pi। हाँ, You can find this using the other formula as well, right? The center length formula. कौन सा फॉर्मूला? जो हमने पहले वाले पार्ट में यूज किया था with center length. हाँ हाँ, आप कर सकते हो, वो सिंपल वाले तरीके से आप कर सकते हो। आप उसी से ही फाइंड इसे कर लो, आर को, और सरकमफेरेंस भी ऊपर निकालो, मर्जी आपकी। यू कैन डू इट दी अदर वे, लेकिन मैंने तो आपको दोनों तरीके सिखाने हैं ना, सो ऑब्वियसली आई एम गोना डू इट ओवर। लेकिन आप लोगों का तरीका बिल्कुल ठीक है, देयर इज नो नीड टू पैनिक, देयर इज नो नीड टू वरी। ओके, नाउ कॉपी फ्रॉम कैलकुलेटर को प्रेस करते हैं और अनवांटेड आंसर को सिंपली पकड़ो, डिलीट का बटन दबा दो, इजी सीन है। ठीक है, सो रेडियस कितना राउंड इसे करूं? 11.5, 3 significant figures. Okay, this is 3SF, right? It's equal to 11.46. This is 2 decimal places या 4 significant figures. Okay, डन हो गया, और इससे ज्यादा डेसिमल की जरूरत नहीं है। आई थिंक दिस मच इज इनफ। आपकी मर्जी, आप जैसे मर्जी राउंड करो। आई वुड प्रेफर 2 डेसिमल प्लेसेस, लेकिन आप 1 भी कर लो, खैर ठीक है। लेकिन प्लीज कोई इसे 11 ना लिखे, खुदा का वास्ता है। व्हेन यू हैव डेसिमल्स यू राइट देम। डन हो गया, कैन आई मूव फॉरवर्ड? सरकमफेरेंस का आंसर आपका एग्जैक्ट 72 आना चाहिए एज पर माई जजमेंट, बिकॉज 72 आता है। अगर आप
वो सिबल वाले तरीके से भी कर लो ना, जस्ट डोंट यूज पाई एस 3.1 या 3.14 3.142 अगर आप यूज करोगे ना, यू विल गेट एन आंसर ऑफ 71.99999 या कुछ ऐसे, वो 72 बन जाएगा, ठीक है। जस्ट यूज इट सर एज ये सिंपल वाला तरीका कौन सा है? सिंपल वाला तरीका। सर वो मैं थी आपने। अच्छा, जो भी सिबल या आमना है, वो लोग ये कह रहे थे कि बजाय 2 पाई आर को यहाँ रखने के, आप आर को यहाँ फाइंड कर लो, 2 पाई को भी यहाँ डिवाइड कर दो, आर की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। जब आर की वैल्यू आ गई, इस फॉर्मूला में आर को प्लग इन करके सरकमफ्रेंस निकाल लो। दैट्स व्हाट दे वर सेइंग। ओके, तो आप कर सकते हो, यू कैन डू दैट, आई डोंट माइंड इट। ओके, वो मैं लाइक अगर मुझे इस रिकॉर्डिंग के बाद टाइम मिला ना, तो मैं वो कर भी दूंगा इधर बिफोर टेकिंग अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। ये मैंने स्क्रीनशॉट लेके इसकी पीडीएफ भी बनानी है, बिकॉज इफ आई क्लोज दिस, ये सारा जाया, आई एम नॉट गोना वेस्ट इट। ओके, आई हैव टू सेव दिस वर्क, ये मेरी मेहनत है, नॉट गोना वेस्ट इट। ओके, so coordinate geometry थोड़ी सी कर लेते हैं। It's been a while since we see it, and we have many people like the great Sybil out there who get scared of this. Okay, so the line L1 passes through points P and T. This is an arrow for those जो लोग ज़रा color blind या visually blind होते हैं, उनके लिए तस्वीर बड़ी हो जाती है। I don't know how it helps, लेकिन चलो। Where the length of PT is 13. The coordinates of point P are 0, P. Show that this is 12. बताओ जी, हाउ डू यू शो दिस कि ये P12 होगा? एनीवन? Y square is y square plus x square is x square. Wouldn't you use the distance formula first? यार मेरे ख्याल से आपको डिस्टेंस फार्मूला यूज करना पड़ेगा, बिकॉज यहाँ मुझे ग्रेडियंट नहीं गिवन, यहाँ मुझे गिवन है डिस्टेंस। ओके, so the only thing that I can use over here is the distance, right? The length of PT is 13. बट एक और भी तरीका है, आप लोग पाइथागोरस नहीं यूज कर सकते? वैसे कॉमन सेंस लगाओ यार। इज दिस अ राइट एंगल ट्रायंगल? यू ऑल नो कि अगर डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करोगे थोड़ा सा लंबा या कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, शायद आप लोगों में से आधे लोगों से वो एल्जेब्रा हो ही ना। सो व्हाई कांट यू यूज पाइथागोरस एज दिस इज अ राइट एंगल ट्रायंगल? 13 इज द hypotenuse, the hype is real. Okay, so let's call this OP. OP is your unknown and OT is 5, right? PT is equal to 13, which is the hypotenuse. Okay, this is PT. OT is equal to 5. 5 comma 0 का मतलब 5. OP is the question mark. So find it by using Pythagoras. ये लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैंने आप लोगों के लिए लिखा है। Let's do it directly. Okay, मैं सिर्फ आप लोगों के लिए डायरेक्टली लिख लेता हूं इधर, बिकॉज आई एम नॉट गोना वेस्ट टाइम। OP स्क्वायर इज इक्वल टू OP स्क्वायर इज इक्वल टू 13 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर। ओके, डन हो गया। अब डायरेक्टली आंसर निकालो। OP स्क्वायर, सॉरी स्क्वायर मैं यहाँ से भी डाल सकता हूँ, मुझे ज़रूरत नहीं है। जस्ट गोना पुट इट ओवर हेयर एंड देन प्रेस द राइट बटन, देन प्रेस दिस बटन अगेन, इज इक्वल टू 13 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर। मेंटली मैं कर सकता हूँ इसे, बट आई एम नॉट गोना डू दैट। 13 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर, इट इज़ 144, ठीक है। एंड 144 का SQRT दबाओ और ANS का बटन दबाओ, ऑटोमेटिक आंसर आ गया। दैट इज इट। जस्ट गोना यूज द कैलकुलेटर ओवर हेयर, copy from calculator button and erase everything that you do not need. Sorry, delete करो, that is it. Okay, ये सारा हमारा आंसर आ गया। So OP is equal to 12, hence small p is equal to 12. Okay, 0 comma p, show that p is 12. Simple. आपको कोई कहने की जरूरत नहीं है ये y कोऑर्डिनेट है, y कोऑर्डिनेट हाइट होता है, तो यार इतना तो एग्जामिनर को भी पता है, ठीक है, बात खत्म, राइट? दिस How do you do it using the distance formula? यार अगर आप डिस्टेंस फॉर्मूला लिखोगे ना पूरा, x1 माइनस एक्स, जो भी x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर, आपको एल्जेब्रा बड़ा करना पड़ेगा। ऑफ कोर्स वो एल्जेब्रा बॉयल डाउन इसी पे ही होगा, लेकिन लंबा स्टेप हो जाएगा। मुझे
ऑनेस्टली वो करने की ज़रूरत नहीं है. राइट एंगल ट्राइंगल इज़ मच बेटर. ओके, प्लीज डोंट मेक मी डू दैट. मैंने ज़रा जल्दी करना चाहता. फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन 1. A repetition of question from May 25 उसके criteria D में आया था. find the equation of a line. You had to find the gradient and the y-intercept. equation of a line कैसे निकालते हैं? You use y equals to mx plus c. Guys, do you know what is c over here? इस लाइन का c क्या है? y-intercept क्या है? बताओ 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 जल्दी जल्दी. 12. इसका मतलब C आपको पहले से पता है 12. ग्रेडियंट कैसे निकालते हो बताओ जी. सनादे ने आपको फॉर्मूला बताया है. वेल उन्हें बताने की जरूरत नहीं क्योंकि आपको यहाँ फॉर्मूला दिया हुआ है. यस, लीनियर फंक्शंस के अंदर मिड पॉइंट सारा ये ग्रेडियंट सब दिया हुआ है भाई. तो वी डोंट नीड एनी सनादर ओवर हियर. वी हैव मैथ एंड यू हैव मी. ठीक है. So आपने simply y2 minus y1 which is 12 minus 0 over x2 minus x1 which is 0 minus 5. So that is simply 12 divided by minus 5. I'm just gonna enter this over here. Sorry ये मैंने क्या कर दिया, गलती हो गई यार. Sorry about that. I was just gonna go here. So gradient is equal to open a fraction y2 minus y1 over x2 minus x1. Okay, which is equal to again a fraction 12 divided by minus 5. Can anyone tell me the answer of 12 divided by minus 5 in minus 2.4. हाँ, आप लोग अपना आंसर एज अ फ्रैक्शन भी रहने दे सकते हो, लेकिन -2.4 इज स्टिल अ गुड आंसर. ठीक है. लाइक डेसिमल्स जनरली हेल्प अस. सो हम अब अपना आंसर लिखते हैं y इज इक्वल टू -2.4x प्लस 12. ठीक है. इक्वेशन ऑफ लाइन आ गई. प्लीज रिपीटेड क्वेश्चंस गाइस. आई ऑलवेज से सवाल रिपीट होते हैं. दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ दैट. कैसे 6 महीने बाद एक और सवाल रिपीट हुआ. ठीक है. आगे फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन L2. ये L2 क्या है? द लाइन L2 passes through point S10,4 and is parallel to L1. Oh, game on. Y is equal to mx plus c. Parallel lines have the same gradient. अगर इस बॉय का -2.4 है तो इस बॉय का क्या होगा? Again a -2.4. Parallel lines have the same gradient. So y is equal to -2.4x plus c. Now how do I find this guy plus c? You need to insert the point 10,4 into this equation above. Into the equation above to find c. Are you ready? Let's do it. Sir, will Yeah. we have to write this explanation? और नहीं नहीं नहीं, ये मैं आपके लिए नोट्स बना रहा हूँ भाई. नोट्स बना. आपने बिल्कुल नहीं यार. उसने फाइंड कहा है उसने. चलो because this is the point that lies on your line L2. You're only allowed to insert the point that lies on your line. आप L2 की इक्वेशन निकाल रहे हो, वो पॉइंट प्लग इन करो जो लाइन L2 पे लाए करता है. दैट्स 10,4. मेरे पे कोई वही नाजिल नहीं हुई कि मैंने 10,4 यूज कर लिया. आई डोंट हैव अ चॉइस. आई हैव टू यूज दैट. ओके यार, ज़्यादा से ज़्यादा आई थिंक ज़ारा पूछी थी अगर आपने कोई सेंटेंस लिखना है ना वो ये लिख लो. दिस इज योर रीजनिंग फॉर चूजिंग अ -2.4x ओवर हेयर. वरना अगर आप डायरेक्टली ये लिखो एग्जामिनर को पता नहीं चलेगा कि ये कहाँ से आया. आई डोंट नो वेदर ही हैज़ अ मार्क फॉर दिस एक्सप्लेनेशन. जनरली होता नहीं, लेकिन अगर हो गया तो यू कैन बी सेव्ड और यू कैन नॉट बी सेव्ड. ओके, ये -24 हो जाएगा. आई कैन डू इट मेंटली. प्लस c is simply gonna be 28. Is that true? जरा मैं चेक कर लूं. Does it make sense? Play the anime. हाँ, ये देखो यार, देखो कॉमन सेंस की बात नहीं है. ये 12 था राइट. ये 12 से भी कोई डबल से ज्यादा ऊपर लग रहा है राइट. ऐसे ही है ना. तो डबल से ज्यादा ऊपर का मतलब 12 का डबल 24 होता है. ये कोई 25, 26, 27, 28 के करीब होगा. सो 28 मेक्स सेंस. डायग्राम नेवर लाइज. नेवर गेट एन आंसर दैट कॉन्ट्रडिक्ट्स विद द डायग्राम. ये मैं बहुत दफ़ा आप लोगों को बताता हूँ. आप लोग अन्नेवा आंसर निकालते हो विदाउट इवन नोइंग कि इट मैचेस और नॉट. अगर आप में से किसी का सी लेट से नेगेटिव आ रहा है
या 12 से कम आ रहा है, इट मीन्स यू आर डूइंग समथिंग रॉन्ग, डायग्राम गलत प्रूव हो रही है, एंड डायग्राम इज नेवर रॉन्ग। ओके, ये आपने इक्वेशन निकाली, डन हो गया, थैंक यू वेरी मच। Hence, determine the x-intercept of this line. Guys, how do you find the x-intercept of anything on earth? Put y equals to 0 and find x. खुदा का वास्ता ये याद कर लो, चाहे क्वाड्रेटिक्स हो चाहे स्ट्रेट लाइन हो, x इंटरसेप्ट किसी भी चीज का निकालना है, पुट y इक्वल्स टू 0 एंड फाइंड x। अपनी इक्वेशन को कंट्रोल सी कंट्रोल वी करो इधर, और यहाँ 0 प्लग इन करो, आपको एक नंबर पहले से मिल जाएगा। नाउ यू जस्ट वांट फाइंड x। -28 इज इक्वल टू -2.4x। डायरेक्ट कैलकुलेटर खोलो, -28 ओवर -2.4, ओके, इस सब को इरेज करो, -28 सॉरी -28 डिवाइडेड बाय -2.4, आंसर क्या आया? 11.6666666667, ओके, दैट इज योर आंसर। x इज इक्वल टू, ये अब कॉपी फ्रॉम कैलकुलेटर कर दिया, सो x इज इक्वल टू 11.67, or you can also call it as x is equal to 11.7. well 11.7 is not that recommended, लेकिन चलो 11.67, और आप फ्रैक्शन में भी लिख सकते हो, आई थिंक ये कोई फ्रैक्शन आ जाएगी, आई डोंट नो हाउ टू कन्वर्ट इट टू अ फ्रैक्शन, ओके। अब उसने x इंटरसेप्ट का है, generally I should try to write this as a coordinate, which is a really good thing, comma 0, उसने coordinates of the x intercept नहीं कहा, so you may be saved, लेकिन प्लीज जब भी कोई coordinate टाइप चीज निकालो ना, try to also write it as a coordinate, you never know examiner को क्या चाहिए आपसे, right? Is this clear? इसमें कोई मसला तो नहीं, इसमें कोई मसला तो नहीं people, can I move forward? ओके, घंटा हमारा ऑलमोस्ट गुजर गया, वी नीड टू स्पीड अप, सीक्वेंस तो हमने तबाही की स्पीड से करना है गाइस। इस सवाल के बाद ना मैं सीधा जाऊंगा सीक्वेंसेस पे, ठीक है। ये हमारा कौन सा सवाल आया? इट्स आवर गुड ओल्ड फ्रेंड द क्वाड्रेटिक, ठीक है। आपको पता है क्वाड्रेटिक के बगैर एग्जाम बन नहीं सकता, ठीक है। और कितने हमें घिसे पिटे सवाल आ रहे हैं, कभी स्लाइड आती है, कभी कोई स्कीम में जा रहा होता है, कभी कोई फुटबॉल शॉट मारता है, कभी स्माइली फेस कर्व होता है, कभी सैड फेस कर्व होता है। और मैंने आपको क्या बताया था, सबसे कॉमनली आस्क्ड फॉर्म कौन सी होती है? वर्टेक्स, ठीक है। नाउ a new slide is designed for a children's playground. The height of the slide is modeled by the quadratic function y is equal to f of x का मतलब है y is equal to a x minus 5। अब देखो ये a लिखा हुआ है, वो घिसा पिटा सवाल दोबारा आप एक्सपेक्ट कर रहे हो? शो दैट a is something, पिछले 4 सालों से लगातार आ रहा है, अब तो शर्म करो जिस किसी को नहीं आता, मैंने सारे पेपर क्लास में सॉल्व कराए हैं, खुदा का वास्ता आप कर लेना, ठीक है। और ये डोमेन आपकी 0 से लेके L तक है, ऑब्वियसली ही इज आल्सो गोना आस्क यू टू फाइंड दिस L, वरना ये सवाल खत्म हो नहीं सकता। सो लेट्स गो डाउन। x इज द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, ऑब्वियसली x एक्सिस है तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ही होगा, और y आपका हाइट होगा, ऑब्वियसली y एक्सिस ऊपर नीचे हाइट होती है। सो यू नीड टू नो व्हाट y इज एंड व्हाट x इज, ओके, देयर इन मीटर्स। जिस किसी को नजर नहीं आ रहा वो इसे बड़ा कर ले, मुझे नजर आ रहा है, आई एम नॉट गोना डू दैट। शो दैट a इज 1। अच्छा जी, a को शो करने के लिए व्हाट डू आई डू? यू प्लग इन अ पॉइंट इनटू दिस इक्वेशन दैट लाइज ऑन दिस कर्व। कैन एनीवन टेल मी मैं कौन सा पॉइंट प्लग इन करूं? 0, 2.5। ये बात, अब ये भी देखो, जो पॉइंट मैं प्लग इन कर रहा हूं, इवन ये पॉइंट भी रिपीट हुआ है। मुझे याद है जो मैंने लेटेस्ट कोई क्वाड्रेटिक का सवाल क्लास में आप सबके साथ सॉल्व किया, पता नहीं कौन सा एग्जाम था, उसके अंदर भी मैंने y इंटरसेप्ट को प्लग इन किया था। यार एग्जामिनर शुड गेट अ लाइफ, एग्जामिनर शुड गेट अ लाइफ, और आपके अक्सर आंसर भी 0.1 0.4 और ऐसे होते हैं। यार ये तो अब ज्यादती है, ओके, बट आई डोंट केयर, ठीक है। सो y इज इक्वल टू, यानी insert, as Ibrahim said, insert 0, 2.5 into the main equation and find a। अब ये लिखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली इंसर्ट करोगे, एग्जामिनर को पता चल जाएगा, आई एम जस्ट मेकिंग नोट्स, ओके। सो 2.5, सॉरी मैंने यहाँ क्लिक करना था, 2.5 इज इक्वल टू
ए ब्रैकेट खोलो, x नहीं लिखना, 0 -5 और यहां ये होल स्क्वायर आपने डाल दिया, ठीक है, डन। अब ऑब्वियसली आपको पता है 2.5 इज इक्वल टू व्हाट इज अ स्क्वायर ऑफ -5? 0 -5 -5 होता है, स्क्वायर ऑफ -5 इज 25, स्क्वायर ऑफ अ नेगेटिव नंबर इज पॉजिटिव, सो दैट्स 25a। डन हो गया। 2.5 डिवाइडेड बाय 25 इज इक्वल टू a। 2.5 डिवाइड बाय 25 क्या होता है? आई नो दिस इज 0.1, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ओके मुझे ये कैलकुलेटर से शो करने की जरूरत नहीं, इतनी मेंटल मैथ्स मुझे आती है। शोन, खत्म, आई एम मूविंग फॉरवर्ड गाइस, ओके। और जब ए आपने निकाल लिया, खुदा का वास्ता प्लीज प्लग इट इन हेयर, प्लग इट इन हेयर फॉर द नेक्स्ट पार्ट्स। No one's gonna do that for you. You have to do that yourself. और अगर आपसे ये show that का सवाल सॉल्व नहीं हुआ, please acknowledge the beauty of show that questions. The answer is given to you. Use this answer in the next parts. खुदा का वास्ता है, जब शो दैट का सवाल हो, आपसे वो सवाल नहीं हो रहा, डोंट स्किप द नेक्स्ट पार्ट्स, आपने वो सॉल्व करने हैं, ठीक है। डू नॉट स्किप एनी क्वेश्चन, गुनाह मिलेगा आपको, जीरो भी आएंगे, गुनाह भी मिलेगा, मेरे से भी फिर बातें सुनोगे, ट्रिपल नुकसान है आपको। फाइंड द हाइट ऑफ दिस स्ट्रट, ओके। अ स्ट्रट इज पोजिशन्ड एट अ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ 1 एज शोन इन द डायग्राम। फाइंड द हाइट ऑफ दिस स्ट्रट। यार एक कॉमन सेंस की बात बताऊं, दिस इज 0 ओरिजिन, when the x coordinate is 1, what is y? height का मतलब है find y, find the height का मतलब है find y, determine the height is equal to find y। y निकालने के लिए या f of x निकालने के लिए मुझे x चाहिए, I need my x coordinate। क्या x coordinate plug in करूं? find y when x is equal to 1, ये आपका सवाल है। अब क्या एग्जामिनर को ये आसान लफ्ज नहीं यूज करने चाहिए थे? वो कभी भी नहीं करेगा, इट्स अ वर्ड प्रॉब्लम। वर्ड प्रॉब्लम्स जनरली प्लग एंड प्ले होती हैं, कीप दैट इन योर माइंड। अगर प्लग एंड प्ले नहीं है, इट मे बी यूजिंग द सिमेट्रिकल प्रॉपर्टी ऑफ अ क्वाड्रेटिक कर्व। यू हैव अ लॉट ऑफ इस तरह की वर्ड प्रॉब्लम्स इन योर रीसेंट पास पेपर्स 2020, 21, 22, 23, 24 और अब 25 में भी दोनों में आ गई है। There's no exam without quadratics, mark my words, okay? So let's do it, okay? So हम अपने यहाँ मैथ में जाते हैं। सो हाइट इज इक्वल टू 0.1 जो मेरा a है, ओके, ओपन अ ब्रैकेट, x -5 है, 1 -5 लिख दो एंड देन जस्ट पुट अ स्क्वायर। डन हो गया। अब ये आपने सिंपली कैलकुलेट कर लेना है, HEIGHT इज इक्वल टू, मैं यहां लिख दिया है, ठीक है। अपने कैलकुलेटर में 0.1 में 1 -5 विच इज -4, -4 का स्क्वायर 16 होता है, ओके। 16 मल्टीप्लाई बाय 0.1, आई नो व्हाट द आंसर इज गना बी, लेकिन मैं फिर भी कैलकुलेटर यूज करूंगा ये सारा टाइप करने के लिए, ताकि आप लोगों को कोई मसला ना हो। 0.1 ब्रैकेट डालो, 1 -5, पुट अ स्क्वायर ऑन टॉप एंड इट्स अ 1.6। मैंने 1.6 वैसे भी निकाल लिया था आंसर, लेकिन आप लोग कॉपी फ्रॉम कैलकुलेटर कर सकते हो। आई एम जस्ट ट्राइंग टू शो दैट, ओके। सो द हाइट इज 1.6, बात खत्म, डन हो गया। नाउ मुझे ये करने में टाइम क्यों लग रहा है? मेरे पास कागज पेंसिल नहीं है अभी, आई कांट रियली शो यू बाय टर्निंग ऑन माय कैमरा दैट आई हैव द कागज पेंसिल, ओके। सो 2 मार्क्स का सवाल है, 1 मार्क आपको ये लिखने का मिल गया या ये लिखने का मिल गया, ये स्टेप, बस, बाकी आंसर का मार्क है, खत्म, दी एंड, ओके। कैलकुलेट द हॉरिजॉन्टल लेंथ, हॉरिजॉन्टल लेंथ निकालो। यार ये फिर वही सवाल इसने दे दिया, व्हाट द हेल इज दिस? फाइंड x व्हेन y इज 0.4। सो ये सवाल एक्चुअली है फाइंड x व्हेन y इज इक्वल टू 0.4। जब हाइट या y कोऑर्डिनेट आपका 0.4 है, जब f of x आपका 0.4 है, व्हाट इज x, व्हाट इज l? L is the distance from the origin up till this point, यानी it is this x coordinate, okay? अब एग्जामिनर ने ये क्यों नहीं लिखा? ओ भाई, एग्जामिनर कभी भी नहीं लिखेगा, you have to make sense of it, okay? अब ये 4 नंबरों का सवाल है, इट मींस मैंने पूरी क्वाड्रेटिक को सॉल्व करना है। सो एवरीवन कम ऑन द ड्राइंग बोर्ड
और हम ये काम अब करेंगे बिकॉज आई कांट डू इट ऑन अ पेपर ओके अब मुझे ये सारा लिख के करना पड़ेगा सो 0.4 इज इक्वल टू 0.4 is equal to a is 0.1 open a bracket x minus 5 close the bracket whole square ठीक है I'm not gonna open the square bracket I'm gonna do it the short way okay 0.4 को 0.1 से divide करो people I'm gonna show that step 0.1 is equal to can I copy paste this over here does control C control V work over here oh yes क्या बात है मैं एम ही पागल था इस सारे को दोबारा टाइप करता था इधर भी कंट्रोल सी कंट्रोल भी चलता है शर्म करो तुम लोग जिन लोगों को नहीं पता ठीक है 4 इज इक्वल टू कैलकुलेटर में भी कर सकते हैं ठीक है हाँ आप कैलकुलेटर में कर सकते हो बट आई डोंट रियली लाइक द कैलकुलेटर ओके यहाँ वो एक्स और वाई को जरा इतना अच्छा वो डील नहीं करता है अच्छा नाउ टेक अ स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स गाइस टेकिंग अ स्क्वायर रूट अब ये लिखने की जरूरत नहीं है ओके ये मैं आपके लिए लिख रहा हूँ ओके सो इसके बाद क्या होगा प्लस माइनस टू प्लस माइनस आपको नजर आ रहा है या यहाँ लिखा हुआ है सो प्लस माइनस टू इज इक्वल टू एक्स माइनस 5 होल स्क्वायर मैंने पहली दफा की बजाय ये दोबारा टाइप किया सॉरी अब स्क्वायर नहीं आएगा माय बैड सॉरी यार ठीक है एक्स माइनस 5 सॉरी अबाउट दैट ओके अब एक ब्रांच मेरी होगी 2 इज इक्वल टू एक्स माइनस 5 एक्स इज इक्वल टू 7 ऐसे ही है ना और दूसरा है माइनस 2 इज इक्वल टू एक्स माइनस 5 एक्स इज इक्वल टू माइनस 2 है तो यानी 3 गुड अब आप मुझे बताओ विच आंसर डू यू वांट विच आंसर वुड यू वांट yes so this is accepted and this is rejected okay do you want to know the Sir, why is 7 rejected? अब मैं आपको बताता हूँ why is 7 rejected and why is that okay अब ये देखो ये quadratic curve है मेरे माउस को देखो इस quadratic curve से आपने सवाल किया ब्रो तुम्हारा x कोऑर्डिनेट क्या है जब तुम्हारी हाइट 0.4 हुई है उसने कहा मेरा x कोऑर्डिनेट 3 है when my height was 0.4 और अब मेरे माउस को देखो इट्स अ स्माइली फेस इट्स इवेंचुअली गना गो डाउन और फिर दोबारा ये अप आएगा जब ये दोबारा अप आएगा दोबारा यहाँ आगे जाके एक पॉइंट आएगा एक्स एक्सिस पे जब इसकी हाइट दोबारा 0.4 होगी दैट इज अ 7 I don't need that one. I need the first instance when its height dropped to 0.4. I don't need the second instance when its height was 0.4. I need the first time when its height was 0.4. So this is rejected and this is accepted. So L is equal to 3. ये आपने लिखना है L का वर्ड लिखना है L is 0 is 3 okay ये आपकी सारी वर्किंग आ गई डन हो गया Sir, what do you mean by this? ये क्या किया? दोबारा बताओ where did you lose track Sir, how's L equals to 3 and not 7? and not 7 आपने अपने कर्व से पूछा क्या था what is your x coordinate when your height is 0.4 ठीक है do you agree with the fact that this quadratic curve is going to continue to come down right Yeah. मेरे माउस को देखो it's going to continue to come down drop below the height of 0.4 and then it's going to again get to the height of 0.4 over here where my mouse is अब आप मुझे बताओ आपको ये एक्स कोऑर्डिनेट चाहिए जब यहाँ 0.4 हाइट रीच हुई है या ये एक्स कोऑर्डिनेट चाहिए जब यहाँ 0.4 हाइट रीच हुई है पहले वाला चाहिए या बाद वाला चाहिए पहले वाला तो पहले वाला की वैल्यू ज़ाहिर है छोटी होगी यहाँ 0 के करीब होगी 3 होगी दूसरा तो बहुत आगे है ऑब्वियसली 7 बहुत दूर है ठीक है नाउ दिस कॉल्स फॉर विजुअलाइजेशन जब भी दो आंसर्स आए आपने पता लगाना कौन सा ठीक है उसने ये नहीं कहा फाइंड द हॉरिजॉन्टल लेंथ उसने कहा फाइंड द हॉरिजॉन्टल लेंथ एक आंसर है ठीक है डन हो गया रेडी स्टेडी एप्पल ओ ठीक है अब हम सीक्वेंस जरा कर लें जरा मूड लाइट करते हैं ज़ाहिर है क्वाड्रेटिक से बाद कुछ लोग चिढ़ गए होंगे मेरे से लेट्स डू सम सीक्वेंसेस जल्दी से हमने करना है बिकॉज स्पीड तेज रखनी है ओके इसका क्राइटेरिया डी वैसे किस पे था यार क्राइटेरिया डी जो इसका है ना वो भी एक एनिमेशन पे है
you plug in values in the animation and you get an answer. लेकिन वैसे जो general topic है, that was like generalistic topic था. मैं आपको अभी दिखाता हूँ. Stage control. I'm not gonna waste time on this, although I preach कि आपको time waste करना चाहिए. A sequence of shape is creating using squares. और यार square से मुश्किल shape देते मुझे. In this question, you will investigate the area of the shaded regions formed by these shapes. Interact with the stage control to see how the shapes are formed. Okay. Wow. क्या बात है. Nice. Okay, guys, find the length L. कैसे निकालोगे? Pythagoras. You wanna find this hypotenuse. L is equal to hypotenuse. Okay, so L square is equal to 3 square plus 4 square. कितने डब्बे हैं? जितने डब्बे उतनी length. You don't need a rocket scientist to tell that to you guys. Okay, so L square is equal to 3 square plus 4 square. और आपको अब पता चल जाना चाहिए as m by p 4 5 kids कि 3 square plus 4 square 5 square आंसर होता है. So your answer is a 5. ठीक है, लेकिन चलो अगर आप लोग चाहते हो मैं लिख देता हूँ. कैपिटल L square is equal to 3 square 9 4 square 16, that's a 25. L is equal to 5. ठीक है, -5 को हम नहीं लेंगे एंड यू डोंट नीड टू मेंशन दैट. ओके, डन हो गया. आपका 1 मार्क का सवाल है, डायरेक्ट आंसर लिख सकते हो बिकॉज एग्जामिनर एक्सपेक्ट्स यू टू नो के 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर होता है. ठीक है सर, या हमें कैसे कैसे पता होगा कि हमने प्लस माइनस अगर लेना है कि नहीं? यार ये लेंथ है, लेंथ कैन नॉट बी नेगेटिव. ठीक है, यहाँ मैंने प्लस माइनस पिछले में क्यों लिया था? बिकॉज उस प्लस माइनस ने मुझे मेरा फाइनल आंसर नहीं दिया था. ये फाइनल आंसर है. वो मैंने कुछ +-2 इज इक्वल टू x-6 कुछ ऐसे था, फिर मैंने आंसर निकाला था. आई डोंट नो माई फाइनल आंसर. ओके, तो यहाँ मुझे करना पड़ेगा. शो दैट द शेडेड L is equal to 5 units, right? क्या हुआ? You can write L is equal to like 5 हाँ units. हाँ, आप 5 यूनिट्स का वर्ड लिख सकते हो. आई एम नॉट गोना डू दैट बिकॉज मेरे पास इतना टाइम नहीं है और उसके कोई नंबर भी नहीं है. 1 मार्क का मतलब है जस्ट द आंसर. ओके, शो दैट द शेडेड एरिया इन स्टेज 4 इज 24. शो दैट का सवाल है, थोड़ी सी वर्किंग यार शो कर दो, एग्जामिनर खुश हो जाएगा. बताओ यार ये 24 कैसे शेडेड एरिया बनेगा? 49 minus 25. सो बिग स्क्वायर का एरिया यानी बिग कंप्लीट शेप का एरिया माइनस अनशेडेड एरिया. ओके, सो बिग स्क्वायर एरिया माइनस अनशेडेड स्क्वायर एरिया. डन हो गया. बिग स्क्वायर एरिया क्या है? दैट इज 7 स्क्वायर. ओके, माइनस what was L? L was 5, so that's 5 square. 7 square minus 5 square. Answer क्या आता है? We all know that is gonna be 49 minus 25. 49 minus 25 क्या होता है? Sybil, mental maths please. 14, right? ऐसे ही है ना? 24. Good job. Okay. Sir, but I did something. 7 और 5 कहाँ से मिला है? ये क्या है? ये तो एरिया का पूछ रहा है ना. हाँ. जो आपका मल्टीप्लाई था. Sir? तो स्क्वायर का एरिया क्या होता है? स्क्वायर का एरिया क्या होता है? क्या मतलब? स्क्वायर का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? लेंथ इनटू विड्थ. हाँ, तो लेंथ अगर 7 है तो विड्थ भी 7 नहीं होगी? स्क्वायर की साइड सारी सेम होती हैं. अच्छा, There's हाँ. not. नहीं तो उसको तो जो मल्टीप्लाई कर. अच्छा ठीक है. 7 So square, what if 7 you into find the area for one triangle and then multiply by 4? 7. This is 3, this is 4, this is 3, this is 4, this is 3, this is 4. यार लंबा काम है, कर लो. आई डोंट माइंड दैट. मैं तो छोटा काम ही करूँगा. ठीक है, कर लो आप. फर्स्ट जस्ट मेक श्योर एक दफ़ा के सारे ट्राइंगल्स इक्वल हैं. ठीक है, दे ऑल आर वैसे इक्वल. सो कर लो, आई डोंट माइंड दैट, बट आई एम नॉट गोना डू दैट भाई. ओके, क्या हो रहा है ये इधर? इज इट 30? Is it 36? Please say yes so that I can feel proud of myself. So this is an यार arithmetic के प्लीज खुदा का वास्ता स्पेलिंग ठीक कर लो. मैं नंबर काट काट के थक गया हूँ.
This is an arithmetic sequence which increases by 6 and all terms are even. ठीक है, डन हो गया. फाइंड द जनरल रूल ऑफ एस इन टर्म्स ऑफ एन. यार मैं ये डायरेक्टली ना कर लूँ, मुझे फॉर्मूला लिखने की जरूरत है. गाइस कैन आई जस्ट डायरेक्टली राइट इट एज 6n? कम ऑन, इतना तो मुझे अब अलाउ कर दो ना. आई एम नॉट गोना शो द लेकिन वर्किंग. अगर इतना लिखेंगे तो 2 मार्क्स पूरे नंबर, हाँ हाँ पूरे नंबर. बिकॉज एक नंबर आपके आंसर का है, दूसरा ये जो सिंबल्स आपने यूज किए हैं वो हैं. ओके, सो अगर आपने वो वर्किंग शो भी करनी है, आप डायरेक्टली ये कर सकते हैं. एस इज इक्वल टू द फर्स्ट टर्म प्लस n-1 इंटू दिस 6 ओवर हियर. बस दैट्स इट. इससे ज्यादा कुछ नहीं शो करना. लाइक डायरेक्ट आंसर शो कर दो. ओके, बट सिंप्लीफाइड आंसर शो करना है. जिसने ये शो किया नंबर कट जाएगा. ठीक है, सिंप्लीफाइड आंसर होना चाहिए. वेरीफाई योर रूल फॉर एस. कौन सी टर्म पे वेरीफाई करना है? वेरीफाई ऑन द फिफ्थ टर्म. ओके, सो s इज इक्वल टू 6 ब्रैकेट खोलो 5, s इज इक्वल टू 30. वेरीफाइड सक्सेसफुली. ये मैं एक दफ़ा पूरा लिखूंगा ताकि कॉपी पेस्ट कर सकूं अगले पार्ट के लिए. आई एम नेवर गोना राइट दैट अगेन. एज आई गॉट द करेक्ट answer same as the. Okay, that's a beautiful sentence right there. I'm so proud of myself. क्या बात है. Okay, shaded area, area of outer square, unshaded area. हाँ, आपने ये सारा काम अब u के लिए करना है. Okay, that's u. Predict more values and record in the table. Guys, 30, 36. डन हो गया? Sir, हाँ हाँ I have a question. हाँ, Like, please, if they beta. don't give you, like, if they give you, like, the next boxes too, but they don't give you the stage number, are you supposed to fill them as well? नहीं यार, उनके नंबर नहीं होते. मैं कभी कभार एक आधा कर देता हूँ, एक आधा, जस्ट टू शो माई इंटेंट के ब्रो एग्जामिनर मैं अंधा नहीं हूँ. मुझे पता था वो एम्प्टी थे, बट डोंट टेल मी टू डू थिंग्स विच आई एम नॉट क्रेडिटेड फॉर. ओके, सो आई एम नॉट गोना डू दैट एनीवेज. लेकिन चलो आप कर लेना एक आधा, बस ज्यादा नहीं. जो कुछ में ना बहुत ज्यादा नीचे दिए दिए होते हैं. डोंट फिल ऑल ऑफ देम, जरूरत नहीं है. कैन एनीवन टेल मी ये +3 हो रहा है, +5 हो रहा है, +7 हो रहा है, +9 इसमें करो 34 होगा ना, और फिर +11 करो 46 होगा ना. आंसर आ गया. ओके गाइस, आइडेंटिफाई वन पैटर्न फॉर ए. ये देखो, ये कॉपी पेस्ट करो और अपना आंसर लिखो. आइडेंटिफाई वन पैटर्न फॉर ए. आंसर क्या लिखा है? ये +11:45 नहीं होगा? +11:45. ओके, सॉरी. Thank you yaar, thank you yaar. Sorry about that. A is an arithmetic. Oh no. All terms are square numbers and this is a quadratic sequence. Okay, done हो गया. आगे आइडेंटिफाई वन पैटर्न फॉर यू. सर, हाँ, अगर आप पैटर्न में लिख लें कि मतलब अगर नंबर ऑल्टरनेट्स बिटवीन इवन एंड नहीं यार तो तुम PYP के अंदर नहीं हो. ऐसे नहीं होता. ऑल टर्म्स आर होल नंबर्स. द टर्म ऑल्टरनेट्स बिटवीन इवन एंड ऑड. ओ भाई, ये चीजें नहीं हम करते. कितनी दफा मैं इस पर नंबर काट चुका हूं, तुम लोग फिर भी ये लिखते हो. हाँ भाई, Sir, we can write it in a geometric sequence as well. इट्स नॉट अ ज्योमेट्रिक सीक्वेंस. बड़ी मेहरबानी आपकी. क्वाड्रेटिक है. ओके, सो Okay. U के अंदर दिस इज अ क्वाड्रेटिक सीक्वेंस विद अ फिक्स्ड सेकंड डिफरेंस ऑफ. अब ये पता नहीं इटैलिक्स में क्यों आ रहा है, सॉरी. है ना, इसे जरा इटैलिक से हटाता हूँ. Is it necessary to write that all terms are square numbers? यार मैं तो लिखूंगा बिकॉज मैं कभी भी पॉइंट ज़ाया नहीं करता. आप लोग हमेशा नाप तोल के पॉइंट्स लिखते हो, मैं खुला लिखता हूँ. I would say it is necessary because it is a much more relevant quality over here than a quadratic sequence. Okay, this is a quadratic sequence having आप लोग ने काफ़ी लोगों ने May 25 जो मुझे रिस्पॉन्स फाइल सेंड किए, आप लोग कहते हो इट हैज़ अ सेकेंड डिफरेंस.
दैट्स इनकम्प्लीट. इट हैज अ फिक्स्ड या कांस्टेंट या कॉमन सेकंड डिफरेंस ऑफ 2. ठीक है, एंड इंक्रीजिंग फर्स्ट डिफरेंस ऑफ 2 भी आप लिख सकते हो, बट दैट्स इट. ओके, can you find the general rule of u in terms of n? Yeah, you can do that. Okay, so finding the general rule of u in terms of n. ठीक है, ये अब हम सॉल्व कर लेते हैं. सो ऑब्वियसली a is equal to second difference divided by 2 which is equal to 1. सही है, डन हो गया. सॉरी, डन हो गया. 3a plus b is equal to second term minus first term, 13 minus 10. Okay, 3 plus b is equal to 3. b is equal to 0. oh nice, बहुत अरसे बाद एक सीक्वेंस है जिसमें b 0 है. a plus b plus c is equal to the first term which is 10. Okay, 1 plus c is equal to 10. c is equal to 9. तो मेरा रूल क्या बना? u is equal to n square plus 9. ओहो, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया? n square plus 9. नाउ एवरीवन जिन्होंने मॉक सॉरी May 25 की रिस्पॉन्स फाइल मुझे सेंड की है, आई पीनलाइज्ड एवरीबडी जो ये सही अपना आंसर नहीं लिखते. यू आपने लिखना है, यू मस्ट राइट द सिंबल यू. ओके, UN नहीं लिख सकते, ये कैपिटल U यहाँ लिखा हुआ है, आप U के लिए हर चीज कर रहे हो. टेस्ट एंड वेरीफाई योर जनरल रूल फॉर दिस. कौन सी टर्म के लिए टेस्ट करना चाहोगे? थर्ड टर्म कर लें. ओके, सो टेस्ट डन हो गया ऑन द थर्ड टर्म. ठीक है, U इज इक्वल टू 3 स्क्वायर. यार ये तो ये रोला है ना, ये तो इतना नीचे चला गया, और इसको यहाँ से उतारें प्लस 9. Sorry, I'm wasting time. Is equal to 3 square plus 9. That is gonna be 18 plus 9. 18 plus 9 क्या होता है? Oh, is my general rule correct? I said 3 square plus 9 is 18. So 3 square 9 हो जाएगा. Oh, या 18. सही है. मैं ना 9 स्क्वायर में चला गया था. अब मेरा वो ऊपर वाला पार्ट क्या है? सही था, मुझे एक सेकंड के लिए लगा आई मीन अ पैरेलल यूनिवर्स, हम सब गलत करें एंड वी ऑल शुड लीव, लेकिन फिर मैं अभी आया हूँ. टेस्टेड सक्सेसफुली. मुझे लगता है मुझे रात का खाना नहीं सही मिला. एज द टर्म्स गिवन ओके, डन हो गया. अब इसी को हम कॉपी पेस्ट करते हैं. चेक करना, गेम ऑन. अब चेक करना, ये देखो टाइम ऐसे सेव करते हैं एग्जाम में, खुदा का वास्ता ये यूज़ कर लेना. 6th टर्म इस दफ़ा कर लेते हैं. इट्स गोना बी मच मोर एक्साइटिंग फॉर अस. 6 स्क्वायर क्या होता है? 36. 36 प्लस 9 क्या होता है? 36 प्लस 9 इज गोना बी 45. ओके, वेरीफाइड सक्सेसफुली. नहीं लिखना खुद ब्रो, कॉपी पेस्ट प्लीज़, कॉपी पेस्ट किया करो. जो लोग कैलकुलेटर की स्क्रीन के अंदर काम करते हैं वो ये कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते उस तरह से, मैं कर सकता हूँ. ओके, नाउ जस्टिफाई. गाइस, आपको पता है ये प्लस माइनस की गेम है. ओके, आई डोंट इवन नीड टू लुक एट द डायग्राम. कोई चीज यहाँ प्लस माइनस हो रही है टू गेट मी दिस कॉलम यू. मुझे बताओ कौन सी चीज किससे प्लस माइनस हो रही है टू गेट मी यू? बहुत सिंपल सी चीज है. Area of the outer sphere minus shaded area. गुड. ए वाले कॉलम को अगर मैं एस वाले कॉलम से माइनस करूं, मुझे यू वाला कॉलम मिल रहा है. सो इफ आई कैन समहाउ फाइंड दिस जनरल रूल एंड फाइंड दिस जनरल रूल, और इन दोनों जनरल रूल्स को माइनस करूं, मुझे ये जनरल रूल मिल जाना चाहिए. ओके, सो
u is simply equals to a minus s. So the general rule of u is equal to general rule of a minus general rule of s. इसे 3 दफा लिखो, general rule of a minus general rule of s. Now let's try to find the general rule of, we know what the general rule of s is, so हम ऊपर निकाल चुके हैं. Okay, general rule of s is equal to 6n, already found above. ठीक है, अब जनरल रूल ऑफ ए क्या है? ए इज अगेन अ सीक्वेंस ऑफ स्क्वायर्स. ओके, लेकिन ये जो सीक्वेंस है ये 4 से शुरू हो रही है. 4 5 6 7 8 9. सो इट्स लाइक 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर. ओके, सो इट्स लाइक n+3 का स्क्वायर हो रहा है. लेकिन चलो हम उसका पूरा वो तरीका कर लेते हैं. ए इज, अब मुझे वर्किंग उतनी भी शो करने की ज़रूरत नहीं. यू नो दैट दिस इज़ अ प्लस, ये +9 है, फिर ये +11 है, फिर ये +14 है. सो अगेन 9 11 14, ये वही 2 है. सो ए इज सिंपली गोना बी 2/2. ए इज 1. 3a plus b is equal to second term minus first term, 25 minus 16. I'm gonna directly write the answer as a 9. So b is simply gonna be 6. Okay, good. Sir, I think it's Wait. squared plus 6. I'm doing it. Plus c is equal to the first term. The first term is 16. Okay, 16. So 7 So you're plus 17 c with you. is equal to, oh, So you wrote 17. हाँ सही. I can see. मुझे बस एक second दो. I please allow me to make mistakes sometimes for 5 seconds. ठीक है. Now I have the general rule for a. A is equal to n square. इस square को मैं ज़रा ठीक करता हूँ. Plus 6n plus 9, n square plus 6n plus 9. और इसे अगर आप लोग, अगर मैं होता ना, मैं तो लाइक मी बीइंग अ मैथ टीचर, मुझे तो आंसर डायरेक्टली थोड़ा बहुत आइडिया था. बट लाइक अगर आप में से कोई इसे डायरेक्टली करता ना, आपको पता चलना था इट वाज एक्चुअली गना बी n+3 होल स्क्वायर. आपको पता है कि अगर इसे आप मिड टर्म ब्रेकिंग के थ्रू फैक्टराइज वगैरह कर लो, ये n+3 होल स्क्वायर बनता है. ठीक है, ये आप डायरेक्टली तो कमाल के निकाल सकते थे, लेकिन चलो मैंने वर्किंग के साथ निकाल दिया. नाउ लेकिन ये मैं सिर्फ आगे वैसे ही लिख रहा हूँ. ओके, ब्रैकेट के अंदर आपको लिखने की वो देखने की ज़रूरत नहीं है. ठीक, सो इससे ज़रा यार पाई को नीचे लाओ, ये बहुत वैसे मुझे इरिटेट करता है. नेवर थॉट कि ये होगा. ओके, नाउ लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट दिस रूल. ओके, जनरल रूल ऑफ यू इज इक्वल टू जनरल रूल ऑफ ए माइनस जनरल रूल ऑफ एस. आर यू ऑल रेडी? जनरल रूल ऑफ यू इज इक्वल टू जनरल रूल ऑफ ए. अब देखना मैं कैसे लिखता हूँ. इज इक्वल टू दिस गाय माइनस 6n. 6n माइनस करो, आंसर क्या आता है? प्लस 6n माइनस 6n. आंसर क्या आएगा? Squared plus 1. बस, इज दैट योर आंसर? अब यार मैं दुआ ही कर सकता हूँ कि आप लोगों को भी इतनी आसान सीक्वेंस आए, इतनी आसान जस्टिफिकेशन आए. आई कैन प्रे. लेकिन आई एम ऑल्सो देन सर्टन कि आपको मैंने पाए, स्क्वायर रूट, फ्रैक्शन और मॉक में याद कर लो, उस तरह सब तरह की सीक्वेंसेस कराई हुई हैं. सो I still have trust in my abilities and your abilities that if you've practiced all sequences, आपको कोई मसला नहीं पेश आना चाहिए. Hence justified as I got the ये सेंटेंस प्लीज लिखो, ये लिखना ज़रूरी होता है. ठीक है, डन हो गया? कैन वी ऑल मूव नाउ? आई थिंक हमने सीक्वेंसेस का सवाल ये जो है पूरा 25 मिनट्स में किया, विच इज़ अ गुड स्पीड. ऑफ कोर्स अभी मेरे पास कागज़ पेंसिल नहीं है, बट ओके, दैट्स डिसेंट आई वुड से. और मैंने कोई 2 नंबर यहाँ नहीं की, मैं हर चीज़ यहाँ टाइप किया आपके सामने. ठीक, क्वेश्चन 6. कम ऑन पीपल. हाँ यार, ये मॉक
के अंदर आया था। Hmm. मॉक के अंदर आया था। पीपल मास कैसे निकालते हैं? इफ डेंसिटी इज इक्वल टू मास ओवर वॉल्यूम, मास इज इक्वल टू डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम। कैन यू नाउ टेल मी के मास का आंसर क्या होगा? डेंसिटी यानी 19.32 मल्टीप्लाई बाय 25। ओके, सो 19.32 मल्टीप्लाई बाय 25, आंसर आ गया 483। ठीक है, ठीक है, सो आंसर इज 483 ग्राम। बस सिर्फ इतना लिख दो, ख़त्म, कुछ और लिखने की ज़रूरत नहीं है। चलो मैं आपके लिए मैं ऐसे जीरो लिख देता हूँ। ओके, आगे। द गोल्ड बार इज यूज टू क्रिएट द एम्परस क्राउन। गाइस, द गोल्ड बार इज यूज टू क्रिएट द एम्परस क्राउन का मतलब जो मैस इसकी गोल्ड बार की है वही मैस एम्परर के क्राउन की होगी। जाहिर है जब मैंने एक मटेरियल को यूज़ करके दूसरा मटेरियल बनाया है, वो पूरी क्वांटिटी, वो पूरी ग्रामेज मैंने यूज़ की है to create the new thing, right? The crown is symmetrical and has two stems with an equal number of leaves on each side. ये आपको नजर आ रहा है, ठीक है? ये एनिमेशन थी। It is symmetrical. Draw the line of symmetry on the crown. यार लाइन ऑफ सिमेट्री या मिरर लाइन कौन सी होगी? ये वाली होगी या ये वाली होगी? पहले ये जरा बताओ, वर्टिकल होगी या हॉरिजॉन्टल? वर्टिकल। और क्या मैं इसे मिडल में ऐसे ले आऊं? क्या बात है, सो गुड, नाइस, ठीक है। ईच स्टेम इज मेड अप ऑफ अ सिलेंडर। लो जी, सिलेंडर, आपको सिलेंडर के सारे फॉर्मूले गिवन है। सरफेस एरिया वॉल्यूम खोलो, गिवन है ना सारे? बल्ले बल्ले हो गए। ईच स्टेम इज मेड फ्रॉम अ सिलेंडर ऑफ लेंथ 300 millimeters एंड दिस इज 5 millimeters। ओके, डिटरमिन द वॉल्यूम ऑफ बोथ स्टेम्स। वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर का फॉर्मूला अन्य वहां देखो, दैट इज पाई आर स्क्वायर एच। So volume is equal to pi into r square, that's 2.5 whole square, and multiply by h, which is 300। okay, and that is simply gonna be there। अब पता नहीं ये जी कैलकुलेटर में कॉपी शायद नहीं हो सकता, तो I'm gonna, मुझे डायरेक्टली कैलकुलेटर में ही कर लेना चाहिए था। सॉरी अबाउट दैट, सॉरी अबाउट दिस अगेन, इतनी प्रैक्टिस है नहीं। हाँ, मैं यहाँ कर नहीं सकता कॉपी, सॉरी। सो पाई मल्टीप्लाई बाय 2.5 मल्टीप्लाई बाय 300, आंसर आ गया मेरा जी। से इरेज करो। ओह, थैंक यू यार। 5890.486। ओके, 5890.486। अब 5890.49, 2 decimal places आर इनफ। और ये मिलीमीटर क्यूब होगा, ठीक है? यूनिट अपना याद रखना, मिलीमीटर क्यूब, जानोगे? उसने मुझे यूनिट्स का कुछ नहीं कहा था। मीडिया इज इंटरेक्टिव। दिस इज वन स्टेम। ओके, ये डायामीटर है तो रेडियस को आधा करना ना भूलना, अक्सर लोगों ने ये गलती की थी। थैंक यू वेरी मच। each leaf this leaf over here can be modeled as a combination of two shapes, an isosceles triangle and a semicircle. Show that the height h of the triangle is 30 millimeter to the nearest whole number। ये height निकालो। सर हाँ, पिछले क्वेश्चन में टाइम्स 2 ही नहीं होगा क्योंकि दोनों स्टेम्स की उसने एक ओ ओहो यार, दिस इज द वॉल्यूम ऑफ वन। गुड यार, सॉरी यार अमार, मैं तुम्हें इतना तंग करता हूँ। यू आर अ नाइस गाय, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ बोथ स्टेम्स इज इक्वल टू, सॉरी, इसको कैलकुलेटर में जाओ और ए एन एस प्लस ए एन एस करो, ये आंसर आया। ओके, आ गया।
डन हो गया. So that answer is gonna be 11780.97. Two decimal places always a good idea. Okay, that's the volume of two stamps. ओके गाइस, ईच लीफ कैन बी मॉडल्ड. ये अब आपने ये हाइट निकालनी है. हाइट के लिए ये राइट एंगल ट्राइंगल यूज करना पड़ेगा. अगेन ड्रॉ दिस ऑन योर रफ शीट. लेबल दिस एज हाइपोटेन्यूज, लेबल दिस एज ऑपोजिट, लेबल दिस एज एडजेसेंट. और ये अगर टोटल 20 है तो ये आधा क्या होगा? 10 होगा. सो एडजेसेंट इज 10 और ये हाइट आपने निकालनी. यू आर गोना यूज tan, टोआ. tan ऑफ ऐसे लिखोगे आप, tan of 71.56 is equal to opposite, which is h divided by 10. ठीक है. So h is simply equal to tan multiply by this. सब कुछ लिखने की जरूरत नहीं है. h is equal to simply ऐसे लिखो और कैलकुलेटर में आओ. tan of 71.56 multiply by 10. यार फिर गलती मैं कर देता हूँ. tan of 71.56, tan of 71.56 multiply by 10. okay, 29.99. ओके, अब देखो उसने शो दैट का सवाल का है और राउंडिंग का आंसर का है. पहले नॉन राउंडेड आंसर शो करो हमेशा, फिर राउंडेड आंसर को शो करना है. राइट. सो माय आंसर फॉर एच आफ्टर राउंडिंग इज 30 मिलीमीटर. नियरेस्ट होल नंबर. बेशक ये कॉपी कर दो, एग्जामिनर को बताओ भाई मैंने राउंड की है. और राउंड करने का तरीका बेस्ट यही होता है, पहले नॉन राउंडेड आंसर दिखाओ फिर राउंडेड आंसर दिखाओ. ठीक है, दैट्स इट. अगर नॉन राउंडेड आंसर ना दिखाएं यार, फिर एग्जामिनर की मर्जी है वो एक नंबर काट ले या नहीं. मुझे लगता है वो एक नंबर काट लेगा, बिकॉज राउंडिंग दिखाने का मकसद ही ये है कि मुझे शो करो कि ये आंसर कैसे आया. आपको तो आंसर 30 दिया हुआ भाई, आप तो यहाँ अन्य वहाँ कोई भी रैंडम सा सम लिख के कह दो 30 आंसर आया है. शो करो कि 30 आया है. शो कैसे करोगे? शो ऐसे करोगे, नॉन राउंडेड आंसर दिखा के राउंड करके. दैट्स कॉमन सेंस ना. तो मैं अगर एग्जामिनर हूं और मुझे लगता है ये मार्किंग की में एक नंबर काटेगा ऐसे, डोंट डू दैट. जब भी राउंडिंग का सवाल हो नॉन राउंडेड आंसर दिखाओ फिर राउंड करके करेक्ट आंसर दिखाओ. कैलकुलेट द एरिया ऑफ वन लीफ. एक लीफ इज मॉडल्ड बाय एन आइसोसेलेस ट्रायंगल एंड अ सेमी सर्कल. कैन यू फाइंड द एरिया ऑफ द आइसोसेलेस ट्रायंगल एंड द सेमी सर्कल? So area of leaf is equal to area of semicircle plus area of triangle. Is that true? triangle. What is the area of a semicircle? Area of semicircle is equal to, good. आपका रेडियस जो है यहाँ 20 नहीं है 10 है, और ऑब्वियसली इट्स गोना बी पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाय 2 प्लस यू नो दैट द हाइट इज गोना बी 30. आप यहाँ 29.99 ले लो, 30 ले लो. इस केस के अंदर वेदर यू यूज द राउंडेड आंसर ओवर हेयर आपका फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज इट्स वेरी क्लोज टू 30 एनीवेज. 29.99 भी ले लो, आंसर सेम आएगा. ठीक है. So sir, usually कौन सा आंसर लेना चाहिए? यूजुअली हम नॉन राउंडेड लेते हैं. मैं हमेशा प्रीच करता हूँ नॉन राउंडेड आंसर. मैं यहाँ भी 29.99 ही लूंगा जस्ट टू प्रीच दैट. लेकिन आप 30 ले सकते हो बिकॉज इट्स वेरी क्लोज, लिटरली बहुत क्लोज है. तो जल्दबाजी में आप ये काम कर सकते हो. सही. सो द एरिया इज इक्वल टू, ज़रा हम, ओहो यार, गना किल माई सेल्फ फॉर डूइंग दिस अगेन. सो दिस इज गना बी पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाय 2. फ्रैक्शन ज़रा ले आते हैं. यार मैं कॉपी फ्रॉम वो ये क्यों कर रहा हूँ, कैलकुलेटर में लिखो यार. पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाय 2, ये कैलकुलेटर है. अब ठीक है. ठीक है. सो पाई इंटू आर स्क्वायर विच इज 10 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2. यार डिवाइड बाय 2 ऐसे लिख दूँ, चलो अब ठीक है. पाई स्क्वायर डिवाइड बाय 2 प्लस एरिया ऑफ द ट्रायंगल विच इज 0.5 इंटू बेस विच इज 20 इंटू हाइट कितनी है
29.99। ठीक है, अब प्लीज ब्रैकेट में डालो, खुदा का वास्ता जब प्लस माइनस की चीजें आ जाएं ब्रैकेट में डालते हैं चीजों को। ऑलराइट, हाँ क्या हुआ? ये 2 से इसलिए डिवाइड हो रही है क्योंकि सेमी सर्कल है। हाँ सेमी सर्कल है, सेमी सर्कल, चाहे 2 से डिवाइड कर दो चाहे 0.5 से मल्टीप्लाई कर दो। डन हो गया? टोटल आंसर क्या आया? मैंने कोई गलती तो नहीं ना की है? देखो, पाई आर स्क्वायर, द रेडियस इज 10 नॉट 20, डिवाइड बाय 2 सेमी सर्कल, प्लस हाफ इंटू बेस, कंप्लीट बेस 20 इंटू हाइट विच वॉज 29.99। ठीक है, 456.979। ओके, अब जरा इन बॉयज को भी डिलीट करो, मैं तंग आ गया हूँ इनके साथ। 456.979। इस पूरे आंसर को कॉपी पेस्ट करो यहाँ, एंड देयर यू गो। आंसर क्या आया? 2 डेसिमल प्लेसेस। बताओ जी, कोई 2 डेसिमल प्लेसेस में मुझे इसका आंसर बताए। इफ माने इज हेयर, आई वुड लाइक टू आस्क माने इफ ही इज हेयर। एनीवन? 456 पॉइंट 457 यार, 456.98. 98 2 डेसिमल प्लेसेस में बताना है। जिसने भी 457 का है वो मुंह धो के आया था। ठीक है, अगेन दिस इज एरिया, सो दैट्स मिलीमीटर स्क्वायर। डन हो गया? ये सारे लेंथ्स मिलीमीटर में है। डन? ओके, let's move forward. By completing the table, determine the total volume of the crown in centimeter square. अब अब देखो, ये हर चीज़ मिलीमीटर स्क्वायर में, मिलीमीटर क्यूब में, मिलीमीटर क्यूब में, मिलीमीटर क्यूब में, सेंटीमीटर क्यूब में आ गई। ये कन्वर्जन तो मैं बाद में आपको बताऊंगा। वॉल्यूम ऑफ ऑल द लीव्स 17366। वॉल्यूम ऑफ क्राउन क्या हो गया गाइस? योर आंसर फ्रॉम पार्ट सी तो जरा पहले लिखो, वॉल्यूम ऑफ बोथ स्टेम्स, वॉल्यूम ऑफ बोथ स्टेम्स। ये कॉपी पेस्ट कर दें। 997 2 डेसिमल प्लेसेस, बेहतरीन आंसर है। सो ये आंसर ज़रा हम कॉपी पेस्ट करें। ये देखो एग्जामिनर ने कैसे मुझे हेल्प की है, कमाल यार। कॉपी पेस्ट चल गया। टोटल वॉल्यूम कैसे निकालते हैं ब्रो? टोटल का मतलब क्या है? इन्हें ऐड कर दें हम? कैन आई ऐड देम 17366 में? सो ये प्लस 17366, आंसर क्या आया? 291.4697। ओके, ये कॉपी पेस्ट यहाँ कर दो। हो गया? कुछ मैंने हाथ हिलाया कहीं? कॉपी पेस्ट। अब असल गेम आती है, हाउ डू यू कन्वर्ट मिलीमीटर क्यूब इनटू सेंटीमीटर क्यूब? सबसे पहले कोई बंदा मुझे बताए मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं? बाय डिवाइडिंग बाय अ 10। इज दैट ट्रू? तो क्यूब का मतलब है, अब 10 क्यूब से डिवाइड करो, 10 से डिवाइड ना करो, 10 क्यूब से डिवाइड करो, यानी ट्रिपल द फन, 1 विथ 3 जीरोस के साथ डिवाइड करो, 1000 से डिवाइड करो। सो इसे जब मैं 1000 से डिवाइड करूंगा, आई वुड बेसिकली मूव द डेसिमल प्लेस 3 प्लेसेस टू द लेफ्ट। आप कैलकुलेटर में चेक कर सकते हो, आई कैन डू दैट ओवर हेयर। दिस इज डिवाइडेड बाय 1000, 29.146 समथिंग। ओके, सो आप लोग 29.15 लिख सकते हो। आई थिंक दैट्स अ रियली गुड आंसर, 29.15। ठीक है, आप मुझे बताओ मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं? 10 से डिवाइड करते हैं, राइट? हाँ, तो जब मिलीमीटर क्यूब को सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है तो डिवाइड बाय 10 क्यूब। 10 क्यूब क्या होता है? ठीक है, ऐसे ये याद करनी है, कन्वर्जन याद होनी चाहिए। डन हो गया? 29.15 मैंने 2 डेसिमल प्लेसेस पे राउंड कर दिया। ओ सॉरी, 1 डेसिमल प्लेस गाइस, आई मेड अ मिस्टेक। 1 डेसिमल प्लेस का मतलब ये 97 है ना, तो ऑब्वियसली इस 7 ने इस 9 को वो कर देना, सो ये 1 हो जाएगा और इसे 0 कर दो। ओके, सॉरी यार, गलती हो गई है। Wait, sir, even in this we would add the 0.0? 1 डेसिमल प्लेस उसने कहा है तो लिख दो ऑब्वियसली, बिकॉज 97 था ना वो, तो वो 97 आगे आ जाएगा। 11781 प्लस, अब ये मुझे करना पड़ेगा, 11781 प्लस दिस इज दिस। सॉरी यार, गलती हो गई।
ये होल नंबर्स में ही आंसर आ रहा है। ऑब्वियसली उसने कहा गिव योर आंसर। ओह नो नो नो, सॉरी गाइस, कैन आई अंडू दिस समहाउ? हाँ सही है, रहने दो इसे, सिर्फ अपने फाइनल आंसर को वन डेसिमल प्लेस में दो, फाइनल आंसर। सो ये 29.1 क्या होगा, 29.15 समथिंग, इसे 29.2 कह दो, ठीक है, ऐसे इज इक्वल टू 29.2। अब ठीक है, मैं दोनों तरह से लिख देता हूँ अब, ठीक है, लेकिन फाइनल आंसर वैसे 29.2 ही होना चाहिए, और मैं इसे लिख देता हूँ, दैट इज 1 dB। ओके, डन हो गया। ओके, आपको याद होगा मैंने आपको भी टेबल में बहुत सारी हेल्प्स दी थी। योर आंसर फ्रॉम पार्ट ए, योर आंसर फ्रॉम पार्ट ए, मैथ्स क्या था 483, जल्दी से लिखो 483, यूनिट लिखने की ज़रूरत नहीं, ग्राम दिया हुआ साइड पे, यहाँ लिखो 483, ठीक है। योर आंसर फ्रॉम पार्ट एफ, पार्ट एफ में क्या आंसर आया, टोटल वॉल्यूम 29.2, ठीक है, और ये 25 है। डेंसिटी क्या होगी, कैन यू डू मैथ्स ओवर वॉल्यूम जल्दी से, 483 डिवाइड बाय 29.2, 483 डिवाइडेड बाय 29.2, 16.54। ओके, टू डेसिमल प्लेसेस में कंट्रोल सी किया, यहाँ कंट्रोल वी कर दिया, ठीक है। अब the gold crown is accepted by the emperor if the density is at least 90% of the density of pure gold. What's 90% of this density? 90% of 19.32, जल्दी से निकालो, 90% of 19.32, that is 17.338। ओके, यहाँ कॉपी पेस्ट करो, यहाँ कॉपी पेस्ट करो, ओके। It's not 90% of this, it's 90% of the pure gold bar, okay? अब conclusion निकालो, is this pure gold? Sorry, is this acceptable or not? क्या आपकी density at least 90% यानी इतनी है? No, it is not accepted because आपकी density 90% of pure gold bar से कम है. It is not acceptable. No, it is not accepted. The gold crown is not accepted. रीजन भी देना है, बिकॉज इट्स डेंसिटी इज लेस देन द मिनिमम एक्सेप्टेड वैल्यू ऑफ 17.388, ठीक है। इट्स डेंसिटी आगे ब्रैकेट में बेशक लिख दो 16.54, इट्स ऑलवेज गुड टू मेंशन दैट, ओके। डन हो गया, ओके, डन हो गया। थैंक यू वेरी मच गाइस। यहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं, ये तो गोल्ड बार है, ये तो वैसे ही एम्प्टी है, ओके, नॉट एप्लीकेबल। हम गोल्ड को गोल्ड से थोड़ी कंपेयर कर रहे हैं, गोल्ड तो ऑब्वियसली इससे ज़्यादा है। ऑलराइट गाइस, आखिरी सवाल, शुड वी मूव फॉरवर्ड, लेट्स फिनिश दिस ऑफ। दुआ करो ये 10 मिनट में हो जाए। ओके, सो अब मुझे ना इसकी वीडियो ज़रा देखने देना, ताकि मैं थोड़ा सा गेम ऑन कर सकूं इसमें। आई नो आई हैव टू वॉच इट ऑन द साउंड, सो लेट्स डू इट। Pigeons were once used to deliver messages by different cultures all over the world. They were even used by the military for delivering messages, largely due to their ability to sense magnetic fields and use ultra-low sound frequencies to find their way back home with a very high success rate. These days, messages are mostly sent using the internet. However, the internet speed in some areas is very slow, causing messages to take a long time to send. Also, where the electricity supply is not reliable, there may be power cuts. Depending on the size of the data and the distance it needs to travel, pigeons could be faster than the internet, especially when the data files are large. Pigeons fly for nearly 14 hours during the daytime, and they sleep for about 10 hours at night time. Their average flying speed is around 90 kilometers an hour.
In this question, you will compare the speed of the internet versus pigeons when sending very large data files. क्या बात है. ओके गाइस, सबसे पहले हम ज़रा ये काम कर लें. ओके, चलो जी. क्वेश्चन नंबर 7A. The upload speed of your internet is 1.6 MBs per second. Show that the time required to upload 100 GBs is 18 hours to the nearest hour. MBs to GBs conversion को ज़रा हम पहले देख लें. 1.6 MB in 1 second. ठीक है. So 1.6 MB in 1 second. ओके, अब आपने 100 GBs करनी है. कैन एनीवन टेल मी 100 GBs कितने MBs होते हैं? I believe 1,000. No, that's 1 GB is equal to 10 something 4 megabytes. So आपको 1024 को भी 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. Is equal to 1024 multiplied by 100, which is equal to 102400 MBs. Okay, so ये कितना टाइम लेंगे? So अब बताओ, ये क्रॉस मल्टीप्लाई का सवाल बन गया है. आई एम नॉट गोना लाइक, मैं वो क्रॉस मल्टीप्लाई वाली चीज़ शो कर देता हूँ. इन्होंने लिया इतना टाइम. ओके, सो 102400 MBs कितना टाइम लेंगे? बताओ. क्रॉस मल्टीप्लाई आपने कर दिया. सो ऑब्वियसली यू सिंपली डिवाइड दिस. यू आर गना डिवाइड 102400 बाय 1.6. ओके, सो जल्दी से इस आंसर को लिखो. 1024. अब ये सारा इरेज करो यार. तो ये आईबी की समझ नहीं आती, कौन पागल है जिसने ये इजाद किया कि मैथ को टाइप करना चाहिए. 64 आपका सीन ऑन हुआ. So that's divided by 1.6. That's 64,000 seconds. Now notice this is 64,000 seconds. Okay, so x is equal to 64000. आपको आंसर चाहिए आवर्स में. सेकंड्स को आवर में कैसे कन्वर्ट करते हैं? एनीवन? डायरेक्टली आपको Divided by 60 divided by 20. हाँ, तो Divide by 60. डिवाइड बाय 60 डिवाइड बाय 60 अगेन. हाँ, या आप इसे डिवाइड बाय 3600 कर लो डायरेक्टली. सो दिस इज equal to that. So if you simply divide this answer ANS divided by 3600, you will get 17.78 hours. Okay, this is equal to 17.78 hours. Okay, so 1 HR is equal to 3600 seconds. Okay, so that's it. और नियरेस्ट आवर में आपको करना है. सो ऑब्वियसली x इज इक्वल टू 18 आवर्स. ब्रैकेट में लिख दो नियरेस्ट आवर. डन हो गया. अब देखो, ये आपको ऑब्वियसली वो शो दैट का सवाल था, तो वर्किंग थोड़ी सी शो करनी है. तो पहला सवाल ही आपका क्रॉस मल्टीप्लाई का आ गया. अब आपको ये चीज़ शो करने की ज़रूरत नहीं, डायरेक्टली अपना आंसर लिख सकते थे. ठीक है, लेकिन मेरे ख्याल से मैंने वो चीज़ नहीं शो की. मुझे ये कैलकुलेटर की कॉपी फ्रॉम कैलकुलेटर शो करना चाहिए था. शो दैट का सवाल है. सॉरी अबाउट दैट. हाँ, ये ठीक है, ये वाला नहीं, और ये बाद में शो करना चाहिए था यहाँ पे. सॉरी अबाउट दैट, मैं वर्किंग शो करना भूल गया था. अब ठीक है. ऑलराइट, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड. यार घिसा पिटा सवाल कितनी दफ़ा ये आ चुका है यार, मैं नहीं ये कर रहा. मिड वैल्यूज़ कोई मुझे बता दे खुदा का वास्ता. 90, 100, 110, 120, 130, 140. अब ये भी शो दैट का सवाल है. ठीक, अब आगे चलते हैं यार. अब मुझे बताओ प्रोडक्ट्स क्या होंगे. या अपने प्रोडक्ट्स बता दो, या डायरेक्टली
अपना आंसर हम लिखते हैं जी मीन का, ओके। मेरे ख्याल से हमें डायरेक्टली अपना आंसर कैलकुलेटर पे लिखना चाहिए। लेट्स बस्ट द मिथ कि कैलकुलेटर में डायरेक्टली आंसर नहीं ले सकता, ओके। ज़रा साइड पे हम इसे कर लेते हैं, ठीक। लेट्स इरेज एवरीबडी, लेट्स क्रिएट अ फ्रैक्शन। तो सबसे पहले 3 मल्टीप्लाई बाय 90, फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई बाय द मिड वैल्यूज। ब्रैकेट डालने ज़रूरी है, आई ऑलवेज पुट ब्रैकेट्स, मैं कभी भी ब्रैकेट के बगैर नहीं करूँगा। 10 मल्टीप्लाई बाय 100, ओके, प्लस 15 मल्टीप्लाई बाय 110, ओके, प्लस 120, सॉरी 13 मल्टीप्लाई बाय 120, प्लस 7 मल्टीप्लाई बाय 130, और ये मुझे पता है ये टोटल 50 है। अभी मैं ना इसे ऐसे एंटर करके रख रहा हूँ बिकॉज आई डोंट नो। अच्छा ये 2 था, ओके, सॉरी, प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 140। आंसर देख रहे हो मेरा क्या है? द आंसर इज 113.4, ओके। आई होप दिस इज द राइट आंसर। ये वर्किंग शो करनी ज़रूरी है। सो दिस इज कॉपी फ्रॉम कैलकुलेटर। The estimate mean time is 2 hours. Correct to the nearest hour. Yeah. सही है. So this is 113.4 minutes. So guys, the mean is 113.4 minutes. Okay. How do you convert minutes into hours? आपने इसको divide by 60 करना है. So ANS divided by 60, that is 1.89, which is equal to 1.89 hours. ठीक है. So is equal to, again copy from calculator, सॉरी मुझे इसे काटना पड़ेगा, that's 1.89 hours, ठीक है। so mean is equal to 1.89 HOURS and you convert it to the nearest whole number 2 hours। और अब आप क्या इस पे कॉपी करोगे? to the nearest hour, ठीक है। हाँ अब बताओ। They're not bothered by the answer over 60 thing. नहीं, they're not bothered because obviously उन्हें पता है कि जब मैंने कॉपी फ्रॉम कैलकुलेटर किया तो यही आंसर आया ना, ये वाला आंसर, तो वो एक्सेप्ट कर लेता। उसने मार्किंग की में लिखा होता है कि स्टूडेंट का कैलकुलेटर चेक कर लो, उसने जाहिर है यही आंसर लिख के आगे आया होगा ना, तो बात खत्म। दे डोंट केयर। डन हो गया, ओके। आगे चलते हैं। पिजन फ्लाइट पैटर्न। पिजन्स फ्लाई फॉर 12 आवर्स ड्यूरिंग द डे टाइम, ठीक है। पिजन्स फ्लाई फॉर 12 आवर्स ड्यूरिंग द डे टाइम, सॉरी, pigeons fly for 14 hours during the daytime and they sleep for 10 hours at night time, okay। so fly sleep ऐसे कोई सीन है, ठीक है। नाइट टाइम टू नेक्स्ट मॉर्निंग, और ये डे टाइम है यहाँ से लेके यहाँ तक, ओके। दिस इज द डे टाइम एंड देन दिस इज द नाइट टाइम टिल नेक्स्ट मॉर्निंग, फिर ये डे टाइम, फिर नाइट टाइम, फिर ये डे टाइम, फिर ये नाइट टाइम, ओके। द एवरेज स्पीड ऑफ अ पिजन इज 90 किलोमीटर्स पर आवर। Speed is equal to distance over time. The pigeon flies during the daytime and rests during the night time. A pigeon must fly 2250 kilometers to deliver a message. It starts from Saturday at 10 o'clock. Okay, show that it will arrive the following Monday. यार सबसे पहले टाइम तो निकालो। आपको स्पीड पता है, आपको डिस्टेंस पता है, आप टाइम निकाल सकते हो। सो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड, ठीक है। सो डायरेक्टली कैलकुलेटर पे आओ क्योंकि हमने वक्त ज़ाया नहीं करना। टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। डिस्टेंस इज 2250 divided by speed is 90, okay, that's at 25 and this is 25 hours, okay। so this guy is 25 hours। अभी 25 hours आपको पता है क्या है? सही है। आपकी जर्नी शुरू कब हुई है? एक दिन 10 बजे, सही है। एक दिन 10 o'clock शुरू हुई है। आपको पता है डे टाइम में सिर्फ पिजन फ्लाई करता है
So this is 25 hours of journey time, or fly time. I would say fly time. Okay, so 10 hours टू, ये कब तक फ्लाई कर रहा है? 19 तक कर रहा है, 19 से आगे नहीं जा सकता। 19 आवर्स तक आपने 9 आवर्स फ्लाई टाइम यूज कर लिया, 9 आवर्स फ्लाई टाइम। इसके बाद पिजन सो गया, ठीक है, ये 5 तक। फिर ये 5 से लेकर 19 तक ये कितने घंटे बनते हैं? 14 मोर आवर्स। ये 14 ही बनते हैं ना यार, 14 मोर आवर्स दोबारा बने, ठीक है। 16 घंटे आपने 25 आवर्स ऑफ जर्नी टाइम पूरा करना है, ऑफ टोटल जर्नी टाइम। 9 आवर्स आपने यहां पूरे कर लिए, ओके। फिर ब्रेक आ गई, राइट। फिर 05:00 से लेके 19:00 तक दोबारा यू गेट 14 आवर्स फ्लाई टाइम। तो अभी तक टोटल अप टिल नाउ टोटल फ्लाई टाइम 9 + 14 क्या होता है? दैट्स अ 9 + 14 कितना होता है? दैट्स अ 23 आवर्स। क्या हुआ? कहाँ लिखा हुआ है 10 आवर्स फ्लाई टाइम? Please fix your mic. 10 आवर्स फ्लाई टाइम क्या है? उस पे क्वेश्चन में नहीं लिखा हुआ था कैट फ्लाइज for 10 hours? नहीं, pigeons fly for 14 hours and sleep for 10 hours. अच्छा, ओके, सो ये देखो, पहले 10 से लेकर 19, ये देखो टाइम को देखो ना, 10 आवर्स से लेकर 19 तक फ्लाई किया, फिर ब्रेक आ गई, फिर 5 से लेकर 19 तक दोबारा फ्लाई किया। क्या 25 आवर्स पूरे हुए? 2 आवर्स स्टिल लेफ्ट, 2 आवर्स स्टिल लेफ्ट। सो नेक्स्ट मॉर्निंग, राइट, नेक्स्ट मॉर्निंग जब आपकी ये ब्रेक आई, फिर ब्रेक आई, टोटल अप टिल नाउ ये आवर्स। तो अब 5 से लेके आपने कब तक फ्लाई करना है? 2 आवर्स और 7 तक, 07:00। दिस इज 2 more hours of fly time. So total fly time now is equal to 25 HOURS. So your landing time over there is actually now gonna be this. मंडे को सुबह 7 बजे आपकी अराइवल होगी। ऑब्वियसली मैं डेज भी लिख देता हूँ। दिस इज SATURDAY, ये सैटरडे था, सही। ब्रेक ली, सोए, क्या? हाँ, उसने सैटरडे बताया हुआ। ये देखो, सैटरडे एट 10, सैटरडे एट 10 को चले, ब्रेक ली, दिन मुक गया। ओके, डन। दिस इज नाउ संडे, संडे फ्लाई किया, ब्रेक ली, दिन मुक गया, खत्म हो गया। दिस इज नाउ मंडे। ओके, मंडे को अब टोटल फ्लाई टाइम मेरा ये हुआ। सो अराइवल टाइम, अराइवल ही वो उसे क्या कह रहे हैं ना यार, अराइवल टाइम इज मंडे 7। ओके, अराइवल टाइम इज मंडे। ये अभी देखो, ये कोई वो सवाल है कि मैंने कोई कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला लगाया? ये तो मुझे सिनेमा सीटिंग वाला सवाल याद आ रहा है कि एक सीट ऐड की, फिर गैप छोड़ा, फिर प्लस किया, फिर एक सीट ऐड की, फिर गैप छोड़ा। मैं तो प्लस माइनस ही करी जा रहा हूँ, ठीक है। सो ये हमारा सीन ऑन हो गया, ठीक है। पता नहीं टाइम के पीछे ये बंदा पागल क्यों हुआ है। स्पीड डिस्टेंस टाइम, स्पीड डिस्टेंस टाइम, कितना इसने स्पीड टाइम किया है इस एग्जाम में, खुद देखो। और बच्चे से वो इस एग्जाम के बाद, सर ये फिजिक्स आ गई है पूरी, नहीं वैसे फिजिक्स नहीं था। ओके, यू प्लान टू सेंड लार्ज डेटा फाइल्स टू 3 फ्रेंड्स ऑन सैटरडे 10 o'clock यूजिंग ईदर द इंटरनेट और पिजन्स। ओके, ये सारा पिजन्स था, आपने पिजन्स का एनालिसिस सारा सीख लिया है। एनालाइज द इंफॉर्मेशन टू डिसाइड वेदर द इंटरनेट और पिजन इज द फास्टेस्ट ऑप्शन। फास्टेस्ट, चीपेस्ट नहीं का, फास्टेस्ट का है। फॉर ईच फ्रेंड योर आंसर शुड आइडेंटिफाई 3 relevant factors. Complete the tables by writing the day and time of delivery using the internet and using pigeon, selecting the fastest option, calculating the minimum file size to justify using pigeons. Oh, show suitable rounding in your work. लो जी,
खुद डालो अंदर और खुद निकालो यार। ओके चलो भी 3 रेलेवेंट फैक्टर्स एनीवन इन ऑर्डर टू डिसाइड के फास्टेस्ट ऑप्शन कौन सी है। आई थिंक द फाइल साइज ऑल्सो मैटर्स। उसने लार्ज फाइल्स का है, मुझे क्या पता कितनी फाइल साइज होगी। द फाइल साइज इज अ फैक्टर राइट। द The speed of the pigeon. स्पीड ऑफ द इंटरनेट इज ऑल्सो अ फैक्टर ऑब्वियसली। अगर इंटरनेट स्पीड फिक्स एग्जामिनर ने की हुई है, पाकिस्तान में तो फिक्स नहीं रहती, इंटरनेट स्पीड इज ऑल्सो अ फैक्टर। अब पिजन का ये जो सोने का टाइम और उठने का टाइम, या पिजन की स्पीड, या पिजन ओनली फ्लाइज इन द डे टाइम, ये भी सारे फैक्टर्स हैं। पिजन को अगर कोई बिल्ली खा ले, ओ नहीं नहीं ऐसे नहीं कहते। सो पिजन फ्लाई टाइम रूटीन, या पिजन की स्पीड और स्पीड ऑफ द PIGEON। सो इस तरह की चीज़ मैं कह सकता हूँ। उसकी फ्लाई रूटीन कि वो सिर्फ फ्लाई ड्यूरिंग द डे करता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैंने लिखी। 3 रेलेवेंट फैक्टर्स, आई थिंक दीज आर इनफ। ओके कंप्लीट द टेबल्स। ओके सबसे पहले हम यूजिंग द इंटरनेट करते हैं। कैलकुलेट टूल, ये कोई टूल है, कोई एनिमेशन है। इसमें मैं ये मुझे एग्जैक्टली बता देता है कि अगर मैं इसमें फाइल साइज डालूँ ना, ये मुझे बता देगा कि कितने घंटे में वो फाइल ट्रांसफ़र होगी। ओके सो फाइंड अ वैल्यू ऑफ फाइल साइज टू, अच्छा एंटर अ वैल्यू इन द फाइल साइज बॉक्स एंड कैलकुलेट बटन को प्रेस करो। द इंफॉर्मेशन फॉर 50 GB हैज़ बिन डन फॉर यू। ओके 50 GB का ज़रा चेक कर लें कि क्या आंसर आता है। 50 GB कैलकुलेट, आंसर क्या आया 9। इज दैट ट्रू? अब बताओ 100 का क्या आंसर आना चाहिए। प्लग एंड प्ले कर लूं, 18 लिख दूं यहाँ, क्या बात है। 300 यहां लिख दूं, 53। ओके डन हो गया। अब बताओ अगर ये 18 घंटे हैं तो डेट एंड टाइम ऑफ डिलीवरी क्या होगा। ये देखो सैटरडे 10 o'clock के बाद 9 आवर्स का मतलब है सैटरडे 19 आवर्स। सैटरडे 10 o'clock के बाद 18 घंटे का मतलब है 10 से लेके 24 तक। सो वो एक दिन बन गया। सो संडे एट 4 AM 04:00। ओके मैं आपको आसान चीज़ बताऊं, नंबर लाइन ड्रॉ कर लेना 0 से लेके 24 तक, ताकि 24 आवर्स का डे आप मैप कर लो। दैट्स द इजीएस्ट वे यू कैन डू इट। ओके ऐसे ही है ना। अब 53 आवर्स, अब देखो सबसे पहले आप सैटरडे 10 o'clock शुरू हुए हो, 10 से लेके 24 तक, दैट्स 14। 53 में से 14 माइनस करो, 53 माइनस 14, तो अब आपके पास 39 आवर्स बचे हैं राइट। सैटरडे का दिन आपने पूरा कर लिया, संडे का दिन भी पूरा कर लो, 39 माइनस 24, पूरे 24 आवर्स निकाल लो। अब दोबारा मंडे का जो दिन है ना, वो आपने निकालना है और उसके 15 आवर्स। सो इट इज मंडे MONDAY 15 आवर्स, 15:00। ठीक है अगेन नंबर लाइन आपकी बहुत हेल्प करेगी इन ट्रैवलिंग 53 आवर्स। पिजन का जरा कर लेते हैं। अब देखो यार इतना मजे का सवाल, लाइक दिस वाज रियली इजी गेम खेलने वाला। लेट्स डू दिस। ओके सो यूजिंग द इंटरनेट। अब देखो कैलकुलेट टूल फॉर नंबर ऑफ आवर्स ऑफ the pigeon files rounded to the nearest hour, enter a value in the distance box and click the calculate button. Okay so सबसे पहले फ्रेंड डिस्टेंस इसका 170 है। ओके सबसे पहले 170 पे चेक कर ले आंसर क्या आता है। 170 पे आंसर आता है 2 आवर्स। ओके और 2 आवर्स क्या है, 10 के बाद 12 बजे ही आएगा। ठीक है ये रचना जो है पता नहीं इंडियन है क्या है यार, पाकिस्तानी नाम लेना चाहिए था। 9 आवर्स, 9 आवर्स का मतलब सबसे पहले यहाँ 9 डालो और ये बनेगा SATURDAY। 9 का मतलब 19:00। गुड जॉब। ओके अब यहाँ कैलम, ये बॉय जो है दिस इज 2700। ये 2700 जरा यहाँ डालो, कैलकुलेट दैट्स 30 आवर्स। अब 30 आवर्स कितने बनते हैं आप सबको पता है। 14 आवर्स सैटरडे का दिन है, तो संडे में बाकी 16 घंटे रहेंगे। सो संडे
16:00, ठीक है, सारा मैंने फिल कर लिया. नाउ select the fastest option to calculate the minimum size file for the pigeons. Show suitable rounding in your results. The information for your friend, for the first friend Natalie, has been completed for you. Okay, Natalie के लिए 50 GB pigeons, 100 GB pigeons, 300 GB pigeons. Okay, minimum file size to justify using pigeons. Show your working. That's 11.25 minimum file size. ठीक है, 11.25 11.25 मैं ज़रा यहाँ 11.25 लिख के चेक करूँ. हाउ डज ही नो? ओ 11.25 पे 2 आवर्स बनते हैं. ओ सो यानी वो आपने यहाँ वो फाइल साइज सिलेक्ट करनी है जो इन आवर्स को मैच कर ले. ये कोई वो तरीका शो कर रहा है मुझे. आई थिंक कोई ऐसा सीन है. चलो चेक कर लेते हैं. रचना के अंदर 800 किलोमीटर्स हैं. 50 GB पे कौन यूज़ होना चाहिए? सो 50 GB पे ये बॉय यूज़ कर रहा है 9 आवर्स. ये भी 9 आवर्स यूज़ कर रहा है. आई थिंक इट्स अ टाई. आई थिंक इट्स द सेम फॉर 50 राइट. 100 GB में ये 18 ले रहा है तो ऑब्वियसली पिजन कम है. आई वुड चूज़ द पिजन एंड आई वुड चूज़ द पिजन ओवर हेयर बिकॉज ऑब्वियसली ये 9 आवर्स से बहुत ज़्यादा ले रहा है. ये तो 53 आवर्स ले रहा है. ओके, सो मिनिमम क्या होगा कि ये 9 आवर्स पे मैच कर जाए. अब मुझे ये 9 आवर्स पे कोई तुक्का लगाना पड़ेगा कि ये 9 आवर्स पे आ जाए. गाइज 9 आवर्स किस पे आना चाहिए? आई थिंक 50 GB पे 9 आवर्स आ रहा है. या 50. सो आई थिंक यहाँ 50 GB पे 9 आवर्स आना चाहिए as done by the tool. ठीक है, डन हो गया. अब कैलम पे ज़रा चेक कर लेते हैं. दैट्स 30 आवर्स और ये ले रहा है. सो ऑब्वियसली ये दिस इज द इंटरनेट, दिस इज द इंटरनेट, दिस इज द पिजन. ओके, बिकॉज ये 53 30 से ज़्यादा. सो इंटरनेट, इंटरनेट, पिजन एंड ऑब्वियसली आपको पता होना चाहिए कि ये 30 कहाँ मैच हो रहा है. सो 30 आवर्स यार मैंने लाने हैं. 30 आवर्स के लिए को 200 GB ज़रा चेक करो. कैन यू कैलकुलेट? ओ करीब आ गया. 180 ज़रा लाओ. ओ करीब आ गया. 175 ले आओ. ओ करीब आ गया. 174 ले आओ ना. 172 3 ले आओ. 170 ले आओ. 170. I think 170 is my answer. Again 170 GB by calculating the tool. इसका एक लंबा तरीका भी है. I'll find the लंबा तरीका and write the working when I post the pictures of this. लेकिन मेरे ख्याल से अभी के लिए you know your close enough answer, right? आपको अपना close enough answer पता है for all of these values. Okay? So मैं आपको इसका लंबा तरीका बता दूंगा because I did try to work it out myself before the lesson. क्योंकि उसने कहा है show your working, मैंने तो कहा है कि done by the tool. Obviously that can give you the full marks. लेकिन that's basically it that we have to do. So basically अब आप नोट करो आपके साथ हो क्या रहा है. आपके ये दोनों क्राइटेरिया डी May 25 और November 25 दे आर गेम्स, देर एप्स, देर एनिमेशंस और एनिमेशंस के थ्रू ही मैं खेल रहा हूँ. ओके, तो दैट्स बेसिकली इट और दिस इज ऑल दैट वी हैड टू डू. So people, thank you very much. You've been a good audience and this is where I will leave you all.